صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے کے ساتھ ساجد حسین اور امارہ صدیق کا السلام علیکم. اور صبح سویرے میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ویکینڈ کے ہمارے شو ہیں آپ کے لیے انفارمیٹو بنائیں اور ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس پر ہم بات کریں. 27ویں ترمیم بھی بالآخر اپنے اختتام کو ہو گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سگنیچر کر کے ملک میں اب یہ ترمیم نافذ العمل ہو چکی ہے. اب اس سے عام آدمی کا بھلا ہوگا یا نہیں؟ البتہ کانسٹیٹیوشن امنڈمنٹ سے جو عوامی بینیفٹس کی جو شکیں ہیں اس پہ شاید کام ہمارے ملک میں کم ہی ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کراچی کی تعمیر, ترقی, خوشحالی کے لیے عام آدمی کیا سوچتا ہے اور حکومت وقت اور میئر کراچی سے لے کے دیگر لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آج بھی ہم نے کچھ مہمانوں کو ہمیشہ کی طرح مدعو کیا ہے, ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں وہ کیسا پاکستان دیکھتے ہیں. پہلے میں ذرا تعارف کراؤں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں سر. اور پہلے ذرا محمد قاسم چوہان, آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور مسز قاسم بھی, عابدہ قاسم بھی ان کے ساتھ موجود ہے. بی بی آپ کو بھی گڈ مارننگ. کہ آپ لائیو کراچی میں ٹائم پر پہنچنا ایک بڑا مسئلہ ہے سر. اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران ظفر بھی ہیں سر, آپ ایکسپرٹ ہیں ہیلتھ اور فٹنس کے, اور ان کی باڈی بتا رہی ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گڈ مارننگ, ویلکم, آپ آ گئے. جی, اور بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری قدرتی چیزوں سے نوازا ہے, وہاں پر ہمیں کبھی کبھار جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے, تو اس میں آپ کو ضرور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ آپ لوگ اتنا کریں کہ جو ہے وہ یہ بہت اب جان لیوا مرض بنتا جا رہا ہے, تو اس سے پریونشن ضرور کریں. جہاں پانی کھڑا ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کریں, اپنے بچوں کو پراپر کور کریں اور اسپریز کریں, ریپیلنٹ اسپریز کریں, ماسکیٹو سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں. اور جو ڈاؤن اور ڈسک ہے, جب ماسکیٹوز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو اس کے علاوہ ہم ہیلتھ اور فٹنس پر بھی بات کریں گے. ہم ڈاکٹر عمران سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر عمران, آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کل ڈینگی بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس سے بچاؤ کے لیے ایکسرسائز وغیرہ یا کیسے فٹ رہا؟ اس کی جو پریکاشن ہے بیسکلی یہ ہے کہ آپ ماسکیٹو اس کا کیریئر ہوتا ہے, جو ویکٹر ہے وہ بیسکلی ماسکیٹو ہے. یہ ڈیزیز جو ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون پرسن ٹو ادر پرسن بائی ماسکیٹو ہوتی ہے. تو سب سے اس کا ایزی یہی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ماسکیٹو کو گھر سے باہر رکھیں گے. اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم ریپیلنٹس لگاتے ہیں, جیسے ہماری باڈی پہ بھی لگاتے ہیں, ماسپیل وغیرہ آتے ہیں اس طرح کے, وہ لگاتے ہیں. شام کے ٹائم میں ہم نہ نکلیں اور کوشش کریں کہ جہاں بھی جگہ ہو اس میں روشنی ہو, پردے کھولیں, مطلب ڈارکنیس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم دیکھیں شام میں ماسکیٹو ڈارک کی طرف زیادہ وہ ان کا ہوتا ہے. تو یہ ہے بس یہ ڈیزیز ویسے ہیومن ٹو ہیومن کیری نہیں کرتی, صرف اس کی ہمیں جو پریکاشن جو پریونشن کرنی وہ ماسکیٹو سے. بخار اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وائٹ سیل نہیں, بیسکلی سر وائٹ سیل پلیٹلیٹس, اس پہ جو زیادہ ایشو ہے نا پلیٹلیٹس ہو جاتا ہے, اور ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. پلیٹلیٹس کا سب سے جو مین ہمارا جو فنکشن ہے باڈی میں وہ کلاٹنگ ہے, مطلب ہماری کہیں چوٹ لگتی ہے, جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو نیچرلی خود ہی بلیڈنگ, انٹرنل بلیڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. یہ 10,000 سے بھی کم ہو جاتے ہیں, 20 یا 30,000 تک بھی چل جاتے ہیں, مگر اس کے بعد آپ کو پھر اس کے پیکس دینا پڑتے ہیں, پلیٹلیٹ پیکس آتے ہیں. ہاں جی, بہت خطرناک بیماری ہے سر, آپ ان سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اہل محلہ میں جیسے جو کھڑے پانی جو کھڑا ہوتا ہے اس میں یہ مچھر آتا ہے, اس کا گھر ہوتا ہے اور یہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے. اور قاسم صاحب بات کریں. قاسم صاحب بینگ این اسسٹنٹ کمشنر, کیا مصروفیات ہیں, کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ مینجمنٹ گروپ ہے اور اس سے کام سے ریلیٹڈ ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹ ہے. شکایت بہت نہیں ہوتی لوگوں کو آپ جیسے افسران کے ساتھ؟ یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بس آلو پیاز کا ریٹ معلوم کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ مینجمنٹ کی کیٹیگریز میں آتا ہے. یہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کی بھی کئی مصروفیات ہوتی ہیں, انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. جیسے اے سی صدر ہے, اے سی ریونیو ہے,
तो उससे रिलेटेड ये काम होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नाउ डेज जो महंगाई है और कराची में जो डेवलपमेंट की काम है उस पर आवाम में गमो गुस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मुझे पता है कि आप हुकूमत को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, लेकिन हल क्या, कुछ आप एडवाइस तो दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हल है इसका। अभी जैसे हमारी एक मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें मेयर मुर्तज़ा वाब साहब हैं और उसमें आपके वज़ीर बल्दियात हो गए और इसमें वज़ीर आला सही से काम कर रहे हैं जी सर। इंशाल्लाह। अभी मैं आपकी हिस्ट्री भी पढ़ रही थी, तो आपकी माशाल्लाह से काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, आप हमें उसके बारे में बताएं। अचीवमेंट मेरी ये है कि 2009 में और 10 में एज आ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक किया था और उसकी बिना पर मुझे स्कॉलरशिप से नवाजा गया। ज़बरदस्त। कनाडा गया, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वहाँ से वापस आया, CSS किया और अभी 2024 से पाकिस्तान में मौजूद हूँ और अभी रिसेंटली 2023 से पाकिस्तान में मौजूद हूँ। 2024 में CSS का टर्म पास किया। अच्छा और अभी सर, यहाँ पर देखा गया है कि CSS बड़ी मुश्किल से पास करते हैं हम लोग, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे जो बहुत अच्छे भी जो होते हैं ग्रेड के, वो भी CSS पास नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है CSS को पास करना? CSS मुश्किल नहीं है इजी है। अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो बिल्कुल इसके लिए तो इजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो लाजमी बात है उसके लिए आगे इंग्लिश एसे है। क्योंकि CSS की बात आ ही गई है तो मुझे उम्मे फरवा की याद आ गई जी। एक उम्मे फरवा खातून की कॉल लैंड हुई थी हमारे पास और वो स्ट्रगल कर रही थी एज को लेकर कि जो 30 इयर्स लास्ट एज है CSS के लिए, तो वो स्ट्रगल कर रही है कि इसको 36 या 38 तक एज को लिया जाए, बढ़ाया जाए कि अगर कोई स्टूडेंट रह गया है तो वो भी मुस्तफ़ीद हो सके या उसके लिए मज़ीद मौक़े हो सके या जो उसके अटैम्प्ट का जो रेशो है उसको बढ़ाया जाए। तो आपकी स्ट्रगल जारी है और हम आपकी स्ट्रगल में उम्मे फरवा अपने प्लेटफॉर्म से बैठे हैं आपकी बात करने के लिए और आप स्ट्रगल जारी रखें। चूँकि एक CSS पास अफसर बैठे हैं तो वो आपकी क्वेरी हम इनके आगे रख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एज जो है ना आपकी कंसेशन है, इसमें 10 साल का एज कंसेशन मिलता है आपको। सिविल सेक्रेटेरिएट कराची से, सिंध से, होम डिपार्टमेंट से आपको मिल सकता है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो तगोदो कर रही है उम्मे फरवा, शायद आप ना जानते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, तो क्या वो अचीव कर लेगी टारगेट्स को? जिस तरह का उनका काम है और जिस तरह की उनकी अचीवमेंट है तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो कर सकते हैं। कभी वो सेनेट जा रही है, कभी वो कौमी असेंबली जा रही है, कभी वो किसको इंगेज कर रही है, कभी वो किसको इंगेज कर रही है। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए लेकिन अभी तक सुनने में नहीं आया कि कोई हुकूमत ने इस पर काम किया। काम तो किया नहीं है, अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तो ये एक सर्टिफिकेट मिलता है एज रिलेक्शन का, ये आपको ये पाकिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट से भी मिल जाता है, कराची से भी मिल जाता है आपको। अच्छा सर, मतलब एक आम आदमी सोचता है कि जो CSS ऑफिसर है उसको बहुत अच्छी मराहत मिलती है, गाड़ी मिलती है, घर मिलता है और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो इस बारे में बताइएगा। नहीं, ये शुरू में नहीं मिलता। ये BPS बेसिक पे स्केल होता है 17 का, ये आपको 18 में जाके हर चीज़ आपको मिलती है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है कि CSS के पास एक फॉर्चूनर होगी, गार्ड होंगे, इसमें कैटेगरीज होती हैं जिसमें इसमें 8 बड़े ग्रुप होते हैं जिसमें से 4 PSP है और डिस्ट्रिक्ट एंड मैनेजमेंट है, उसमें काफ़ी उसमें है। बिल्कुल ऐसी है। चले उनकी ज़रा हम भाभी से बात कर लेते हैं। कैसा जा रहा है ये शादीशुदा ट्रैवल ज़िंदगी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत सारे हस्बैंड्स, बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं उनको अपने मर्दों से शिकायत होती है कि ये बाहर 10 लोगों से मिलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग इनके साथ राब्ते में हैं। आपको तो डर नहीं रहता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि आप हर जगह इनके साथ जाती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तो बिल्कुल भी डर नहीं रहता होगा? नहीं, कभी कभी अकेले भी चले जाते हैं, फिर बहुत डर होता है। हाँ, ये बड़ा मसला है सर ख़वातीन का, और होना चाहिए भाई, अपनी चीज़ है, उसकी आप पहरेदारी भी करें, उसकी केयर भी करें। और ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये ऐसे ही चलता है
کہ आप एक दूसरे का ख्याल करें। सर से आपकी शादी हुई, अब आप एक अच्छी सक्सेस लाइफ गुजार रहे, कोई एडवाइस भी तो दे ना हमारे जो देखने वालों को कि ताकि ये जो नए कपल्स जब इस बंधन में बंध रहे हैं तो सक्सेस रेशो कम होता जा रहा है। सक्सेस रेशियो इसलिए कम होता जा रहा है, एतबार नहीं रहा लोगों को। जी जब तक आप अपने रिश्ते में भरोसा कायम नहीं करेंगे तो फिर सक्सेस कहाँ से रहेगी। आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपका ट्रस्ट लेवल इतना हाई होना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन आपको कुछ भी बोले तो वो आप लोगों के लिए मैटर नहीं करना हाँ, चाहिए। ये दोनों के लिए ना, बहुत जी, साइड दोनों की के तरफ है, लिए। मेल फीमेल के लिए है बिल्कुल। कि आप अगर एक कोई दूसरे पर- मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो उसको आप आपस में क्लियर करें। बिल्कुल अच्छा, ये भी तो होता है ना कि हम चाहे थर्ड पर्सन को ना भी लाएं, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है वो हमारे अपने लोग भी तो होते हैं बिल्कुल, ना, हाँ। बेशक, बहनें, माँ बाप, भाई, ये जो हमारे करीबी रिश्ते हैं, तो वो थर्ड पर्सन का किरदार ये लोग भी तो अदा कर सकते हैं ना। नहीं देखें, अब आप किसी को इतनी अथॉरिटी मत दो ना कि वो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो सके। जब आप किसी को इतनी अथॉरिटी दे देते हो कि वो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर रिश्ता तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रैक तो आएंगे। अच्छा, और ये भी बात है कि अथॉरिटी आप तब दे रहे होते हैं जब आप खुद उस चीज की कैपेबल नहीं होते और आप समझ रहे होते हैं कि मैं इस चीज से निकलना चाहता बिल्कुल, हूँ। वही आ गई ना बात ट्रस्ट वाली। ट्रस्ट वाली बात ट्रस्ट आ वाली जाती है। आप खुद इतने कैपेबल नहीं हो कि थर्ड पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो, तो सही। जब थर्ड पर्सन को आप बीच में इन्वॉल्व करोगे तो ऑब्वियस बात है क्रैक तो आएंगे। Cracks तो कोई आएंगे। भी किसी को ये वो दौर चल रहा है कि कोई भी किसी को खुश नहीं देख सकता। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बचे कहा सर आपने, कोई भी कुछ नहीं देख सकता। ऐसे हासदीन के हसद से बचे कि जो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ तो आपकी अच्छी नज़र आ रही है और मुझे भी एक टाइम पे शौक था बॉडी बिल्डिंग का, और फिर हम कॉलेज में होते थे, हमें दोस्तों ने कहा चल यार चलते हैं। फिर हम गए, वो हमारे ट्रेनर ने आके हमें ये कहा कि फूड सप्लीमेंट आप लोगों ने नहीं लेने, बस आपने नेचुरल जो एक्सरसाइज है वो करनी है। लेकिन आपकी बॉडी से देख के तो लग रहा है कि दादा समथिंग नहीं, इस पर डिपेंड है। देखिए सप्लीमेंट्स अगर जो इस तरीके से हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये तो नॉर्मल है, आप ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी की टाइप्स होती हैं। इसमें 2-3 किस्म के होते हैं, एक तो एंडोमॉर्फ होते हैं, एक्टोमॉर्फ होते हैं, मीजोमॉर्फ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेचुरल फूड, उनकी कैलोरीज इतनी कम होती है कि वो अपना वेट को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम वेट लिफ्टिंग, बॉडी लिफ्टिंग करते हैं, हमें प्रोटीन चाहिए होता है, गुड क्वालिटी सोर्स से हमें कैलोरीज चाहिए होती है, तो उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं, मगर नेचुरल है। देखिए खाली प्रोटीन से नहीं काम चलेगा। अगर मैं पूरा दिन वो एक बॉक्स लेके बैठूं, वो सिर्फ एडिटिव है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक दोस्त, हिज नेम वजाहत अहमद। अब वजाहत, ये क्लिप तुम्हें भेज दूंगा, मैं तुम्हारी बात करने लगा हूँ। वजाहत मेरे स्कूल फ्रेंड थे और वो स्कूल हम 7वीं 8वीं से लेके, हम लोगों ने मैट्रिक किया साथ, फिर हम कॉलेज में आए, तब तक वो बंदा वैसा ही था। तो मैं इसको कहते थे यार हम लोग कॉलेज में आके कुछ बड़े भी लग रहे हैं और तू वैसे का वैसा ही है जैसे 7वीं 8वीं का, वैसे का वैसे कांगड़ी। तो वो परेशान रहता था अपने वेट को लेके कि यार मेरे साथ क्या होगा। एक दिन ऐसा आया जी, कुछ खा लिया उसने, और जब वो यूनिवर्सिटी में हमें मिला तो हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे। ये इसका चेहरा हो गया, ये इसके बाजू हो गए। मैंने कहा भाई ये क्या कर लिया तूने अपने साथ। फिर वो परेशान कि मुझे वापस वही लेकर आ जाओ, ये वैसे जुल्म हो गया, ये क्या था। अच्छा सर, नहीं, ये ये होता मिथ्स भी देखिए- होते हैं कि आप देखिए मैं आपको बताऊँ, जो इस तरह की मेडिसिन होती है ना, जो हम कहते हैं कि इन्हांस कर देती है, जो इन्हांस जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, देखिए वो भी ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन खा ली है, उसके पीछे भी मेहनत तो करनी है आपने। हाँ। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि विदाउट एक्सरसाइज बैठे बैठे आपके मसल्स बन जाएंगे। आपने वो पहाड़ तोड़ने जैसी एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, मगर उसमें कैटेगरी देखिए इन्हांस इसलिए नेचर है। हमारी बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है, मैंने नेचुरली इसको इम्यून कर दिया, मुझे करते करते 20-22 साल हो गए एक्सरसाइज, तो मेरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर गई। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लेता हूँ या इन्हांस करने के लिए जो इंजेक्शन आते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल है। हाँ। जब वो छोड़ देता है, हमने बॉडी बिल्डर देखा है, जब ऑफ सीजन होते हैं दोबारा फिर वो साइज उनके खत्म हो अब जाते अगर हैं। लेट्स सपोज आप छोड़ दें एक्सरसाइज, फिर पहले तो सर मुझे सबसे बड़ा तो डिप्रेशन ही हो जाएगा। अब तो ये इतना बड़ा मेरे लिए मसला बन गया, आज भी मैं सुबह नहीं कर सका जिम, तो मुझे वॉक करना पड़ेगी। एडिक्शन है ये। संडे के दिन मुझे रनिंग, जिम बंद होगा, तो वो तो एक एडिक्शन हो गई, और ये हेल्दी एडिक्शन है। मिथ है या क्या आप ज़्यादा हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, बीगन डॉक्टर एंड एक्सपर्ट हैं आप फिटनेस के। यार वो ज़्यादा वेट आउट आना, ज़्यादा बॉडी मत बनाना, अगर आप इस फील्ड में आ गए तो फिर जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपने ऐसे ही रहना है, जब छोड़ दोगे तो बॉडी लटक जाएगी आपकी।
سر بالکل صحیح بات ہے. یہ وہی بات آ گئی جو انہانس کے لیے میں نے کہا. آپ کی باڈی کیپیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میری باڈی جسٹ سپوز کہ 60 kg یا 70 kg کا بونس کو چھوڑ کے فریم ہے, میں اس پہ اگر اس کا ڈبل ماس کر دوں تو وہ نیچرلی شرنک ہوگی, مگر جو اسکن اور جو بیچ میں جو اسپیس اسکن اور اس کے سبکوٹینیس ہے وہاں پہ پھر فیٹ بڑھنے لگے گی. اچھا سر, یہاں پر زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ آپ جم جو ہے وہ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے جاتے ہیں. نہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں جم جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے نا. آپ وہاں پہ اگر آپ ایکسرسائز ویٹ ٹریننگ کریں گے, کیلوریز کو سرپلس میں اچھی طرح کریں گے تو آپ کے مسل بنیں گے. کیلوری ڈیفیسٹ میں آپ جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, آپ کا ویٹ لاس ہوگا ہیلدی طریقے سے. مگر ہمیں اب یہ کوشش کرنا ہے, آج کل تھوڑا سا میں نے اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے, ویٹ لاس اور فیٹ لاس دونوں الگ چیزیں. میں نے بھی کی غلطیاں. ہم لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں نا کہ کھانا چھوڑ دیا, یہ ہم ویٹ لاس کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمیں صرف فیٹ کو گرانا ہے, مسلس بونس کو مینٹین رکھنا ہے. مگر ہوتا یہ جب ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں مسلس ہم اپنا بالکل ختم کر لیتے ہیں, فیٹ اپنی جگہ پہ. سوری فار انٹرپٹ, یہ میں مجھے تنقید کر کے کہنے دیں, اگر آپ برا اگر کسی کو لگ رہا ہے تو سر اس کے لیے معذرت. یہ خواتین کو تو اتنا ڈائٹنگ کا یہ مائنڈ میں فوبیا بیٹھ گیا ہے. میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں, وہ چکر آ گئے گر گئی. وہی کیا ہوا, میں وہ ڈائٹنگ, کون سی ڈائٹنگ بھائی, کیا یہ ظلم ہے یار, یہ کون سی ڈائٹنگ ہے کھانا چھوڑ دینا کہ آپ اتنے ہیلتھ کانشیس ہیں کہ آپ نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی. یہ ہیلدی نہیں ہے نا. آپ اپنا جب ڈائٹ سے آپ ڈائٹ میں رہتے ہیں, سالٹ بھی کم ہوتے ہیں, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, شوگر لو رہتی ہے, تو یہ کیوں اتنا کیوں, یہ ہیلدی نہیں. ہیلدی یہ ہے کہ آپ نے کیلوریز لینی بھی ہیں, تھوڑا ڈیفیسٹ لینا ہے, اور فرام گڈ سورس لینی ہے جس میں آپ کارب اور شوگر کم کر دیتے ہیں, آپ کی فیٹ کم ہو. اور ایکسرسائز کرنی ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے مسل لاس. اچھا, اب اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ بائی دا ایج آف فیٹ کا ان خواتین میں ایف بھی نہیں ہے, تو بس وہ لیکن وہ پھر بھی نا وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اتنا سلم وہ سلم کے چکر میں وہ بیہوش ہو جاتی ہیں. سر یہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس میں 1% ہے, کوئی جب آپ بہت ٹائم تک آپ ایک چیز کر لیتے ہیں نا تو آپ کا برین بھی کنٹرول کرتا ہے آپ کو. یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو اینوریکسیا سنا بھی ہوگا. اب وہ جب پریویل کر جاتا ہے تو اس سے جان چھڑانا پھر آسان ہے. چلے میں یہ ہاؤس وائف ایک بیٹھی ہیں, یہ خواتین میں کیا آج کل زیادہ نہیں ہے, بی بی آپ ہی رہنمائی کر دیں. میں نے تو ایسی بہت ساری خواتین اکثر ہم ڈراموں میں اور ایکچولی ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتی ہیں, پتہ نہیں آبسیشن زیادہ ہو گیا کہ وہ خوبصورت دکھ رہی ہے, ایک دوسرے کو ہمیں بھی خوبصورت اس نے وہ سلیم میں اسمارٹ ہے, اس کے اوپر کپڑے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں, میں بھی ایسی ہو جاؤں, مجھ کو بھی اچھے لگیں گے. تو اس چکر میں سر آپ اپنی نا یہ ہیلتھ بنا نہیں رہے, آپ اپنی ہیلتھ بگاڑ رہے ہیں. ڈائٹ کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں, آپ ہیلدی فوڈ لے لیں, اور بھی بہت سارے طریقے, اور بھی بہت سارے یہ نہیں طریقے. مطلب آپ ایسی چیزیں مت لیں جس سے فیٹ بڑھتا. ہاں, اور ایک وقفہ لیتے ہیں سر, اور وقفے کے بعد ہم قاسم چوہان صاحب سے پوچھیں گے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کیسی جا رہی ہے اور کتنے اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہیں اور کہاں بیریئر ہے کہ بس یہ لمٹ ہے سر ہماری. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید, اور اسسٹنٹ کمشنر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ان سے پوچھیں گے نا ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں. اور پھر اکثر ہمارے ملک میں ایک شکایت رہتی ہے کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ فلاں محکمہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا, ہمارے معاملات میں آ کے انہوں نے انٹرفیئر کی ہے. یہ شکایت تاکہ نہ ہو, یہ پوچھ لیتے ہیں آج قاسم صاحب کتنے اختیارات ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ گھر کے اختیارات بتاؤں یا گھر سے ہٹ کے؟ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آپ کے کتنے اختیارات ہیں؟ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں اختیارات ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جو اختیارات موجود ہوتے ہیں, سیم وہی اختیارات موجود اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. اچھا جی, مطلب سزا اور جزا کا عمل آپ کے پاس آ گیا ہے؟ ہاں بالکل ہے. اوکے, یہ بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو جو ورڈ کا لائک جج,
यस सर जिस तरह जज के Judicial पास ये magistrate. इख्तियार होता है ना जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, तो ये ही इज़ ऑल्सो जज, मतलब इनके पास वही सेम इख्तियारात हैं, ये संभाल करते हैं, कैद में भी चले जाते हैं लोग ना, आप उन पे अच्छा FIR होती है, उनको आपने सजा अभी दे तक सकते हैं। ऐसा जुल्म सितम किया लोगों पे? हाँ बिल्कुल, एक के साथ जुल्म तो नहीं किया, कोयटा में जो है ना हुआ है एक वाकया हमारे साथ। ठीक है। अच्छा शेयर करें सर, ना? असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में ये भी मतलब कहते हैं कि आप लोग बस स्टैंप वगैरह लगाने के लिए होते हैं, जो एक आम आदमी है वो ये समझता है कि हम आपके पास जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर से, जैसे आप लोग जो है वो वेरीफाई वगैरह करते हैं। नहीं, वो ऊद कमिश्नर होता है, वो ऊद कमिश्नर है, नोटरी अच्छा, पब्लिक सही। जिसे कहा ये वो जाता है। लोग हैं सर, ये अगर आपने खिलाफे कानून कोई काम किया, आपकी इंडस्ट्री, आपका रेस्टोरेंट जैसे कराची में सील नहीं हो रहा अभी, ताला लग ये गया। हमारे इलाके में मतलब ऐसा आप समझें कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियार में एक इलाका होता है कि वो अपने इलाके का जो है मजिस्ट्रेट है, उसके अंडर में 3 या 4 थाने मौजूद होते हैं। इसी तरह एक जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, इसके पास पूरा एक डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट होता जी, है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सर अभी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं पहले डिस्ट्रिक्ट मलीर में था, अभी मैं रिसेंटली अभी मेरी पोस्टिंग हुई है नवाब शाह में। अच्छा, चले। अभी अब आप जिसको भी ना डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह में मतलब ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वहाँ पर ड्यूटी करेगी और फिर वहाँ पर कितना मुश्किल होगा काम करना, लेकिन ये मैनेज कर लेते हैं ये अफसरान ना। हर तरह का प्रेशर इन पर होता है, सियासी दबाव भी कभी कभी आ जाता है। आप पर आया कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं आया। अब आएगा शायद, अब जहाँ आप हैं, है ना? अच्छा, आप जा रहे हैं या जहाँ पे अभी आपकी पोस्ट होगी, अब आ सकता है। जी बिल्कुल। तो फिर कैसे एक लेट सपोज एक रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, कैसे आप उसको टैकल करेंगे? इसको प्रेशर तो आप नहीं कह सकते कि ये है कि हर नहीं, बंदा अपने समटाइम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन भी तो आ जाती है ना। लेट सपोज के ये तो आपके अपने ऊपर है ना कि आप उससे रॉन्ग डिसीजन लें या राइट डिसीजन लें। अच्छा, ऑफर्स भी तो आती है ना आप लोगों को, बिल्कुल फिर आती है अब उसको अगर आप ना लें तो वो भी फिर आपके लिए मसला बन जाता है। जिसने अपना आगे कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो वो तो गलत काम नहीं कासिम करेगा। चौहान अगर असिस्टेंट कमिश्नर ना होते तो क्या होते? मैं इस टाइम पे एज अ माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। ये देखिए, हमारे मुल्क में एक अलमिया ये है कि एक बच्चा ट्रैवल करता है, एजुकेशन हासिल करता है, तो हर आदमी से पूछे तो ये तो चले, अभी तो एक बताया, एक साहब से पूछे तो वो कह रहा है यार ये ना होता तो ये होता, ये ना होता तो ये होता, अब ये हूँ। तो जिस पर वो भारत में एक मूवी भी बनी थी। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग नहीं है, हम जाते कहाँ हैं और फिर हमें कहीं से कहीं चले जाते हैं। आपको बताता चलूं कि 2023 में मैं पाकिस्तान आया हूं और मैंने आके यहाँ पे CSS किया। इससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट कनाडा सिटी ऑफ ओटावा में मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट्सएप डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर सुपरिटेंडेंट काम कर रहा था। जबरदस्त। और अभी वापस मेरा वहीं पर जाने का इरादा हो गया है। अच्छा, जी। क्यों छोड़ के जा रहे हैं मादरे वतन को? मैं छोड़ के नहीं जा रहा, मुझे जो है ना फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है, जिसे आप करंट अफेयर कहा जाता है। सही। वो ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर का क्या होगा? तो ये मेरी पोस्ट वहीं पर ही रहेगी, उसी से ही मैं आगे जाऊंगा। ओह जबरदस्त, ये फिर अच्छा है, फिर तो ठीक है। तो फिर मतलब तो आपकी जगह पर कोई और आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि हमें दूसरे लोगों को भी स्पेस देनी चाहिए, नए लोगों को भी स्पेस देनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा है कि एक टिश्यू का बॉक्स होता है, आपने ही उस दिन ये एग्जांपल दी थी कि जब आप एक टिश्यू निकालते हैं तो दूसरे को जगह मिलती है बाहर आने की। तो ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है वो अपने आगे का देखना चाहिए ताकि दूसरे को भी जो है ना वहाँ पर और तस्लीम का एक बड़ा फैक्टर है जी हमारी सोसाइटी में। Acceptance। और फिर खवातीन शायद उनमें तो ज़्यादा ही कमी है ना, कहते हैं ना जेलसी फैक्टर भी खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। और पूछ लेते हैं ना, आप हमारे साथ मौजूद है, ये है ठीक है ना। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप इस पे देखें, देखिए वो एग्री होता जब है कि जब आप एक बेटर कड़वे ट्रुथ को आप कहते हैं हाँ यार ये है, ये हमारी तो फिर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। तो इसको खत्म कैसे करें फिर? हम ये अच्छी अच्छी और बातें करते हैं ना, लेकिन हमारे हम अमलन कुछ भी नहीं करते। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, दूसरों को तस्लीम नहीं ये करते, दूसरों को मौजों तस्लीम नहीं कर सकते। हाँ। मतलब
वो मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों दिख रही है, उसने मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े क्यों पहने उससे हैं, ज्यादा अच्छा बोल क्यों अभी दिया? ये मेहमान आएगी तो ये पता नहीं क्या पहन कर आएगी, यार ये मुझसे ज्यादा अच्छी लगे। हाँ। इस तरह का फैक्टर खवातीन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन इस तरह सिर्फ हम अपना ही नुकसान कर रहे होते बिल्कुल हैं, अपना सामने वाले नुकसान का कर तो रहे कुछ हैं, भी नहीं किसी का जाता है। कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जाता और इसमें कुछ रखा भी नहीं है। इसमें कुछ वाकई नहीं रखा हुआ इसमें। हाँ, ये इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक जहनी बीमारी है और इस बीमारी से निकले दुनिया में गालिब बहुत कुछ करने को है। उन पे आप ये अपनी एनर्जी ज़ाया करें। और डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ एक्सपर्ट बहुत कम आते हैं हमारे पास। आज आप आए हैं तो आज का जो कराची का बच्चा है, शहर का बच्चा जो रात को जागता है दिन में सोता है, उसकी हेल्थ का क्या होगा? तो बिल्कुल ये एक बहुत ही अरबिंग सिचुएशन है। अभी मैं रात को मैं जिम में था तो मैं ट्रेन कर रहा था किसी को, मतलब मेरे पास है, मैं ओपिनियन दे रहा था, वो हमारा होता है न्यूट्रिशन प्लान में। तो मतलब मैं हैरान हो गया हूँ, अब पिज़्ज़ा, फ्राइज़, पेस्ट्रीज, वो आइटम जो कि बिल्कुल नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे आपकी बॉडी पे। नेगेटिवली। अच्छा, उस पर वो इतने स्टबन हो जाते, कहते हैं हम ये छोड़ नहीं सकते। हाँ, सही। तो फिर बड़ा उनसे कह के रिक्वेस्ट करके कि भाई चलो थोड़ा सा आप क्वांटिटी कम कर दो कि शायद कैलोरीज कम हो और हम आपसे काम करवा लें। हाँ, सही। तो हम एक्सरसाइज करवा के इस तरीके से उनसे मतलब बार्गेनिंग करना पड़ता है। बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि कहते आप घर का अपना खाना नहीं खाएंगे। हाँ, अभी किसी से मेरी बात हो रही तो कह रहे थे मैं भाई नगेट्स लेके जाऊंगा, नगेट्स के अलावा बॉइल्ड एग तो मैं नहीं खा सकता। हाँ, तो मैंने कहा भाई जहाँ आप 10 लेके जाते हैं आप 5 कर दें, साथ 2 बॉइल्ड एग कर लें, कोई और चीज़ें फ्रूट रख लें जो ऐसा। सर, इस तरह आजकल यंग स्टूडेंट्स में या यंग लोगों में भी देखा जा रहा है, ये जो है वो घुटनों का चटकना, इस तरह से आवाज़ें वगैरह आती हैं, फिर गर्दन का भी। तो इसके लिए बताएं एक्सरसाइज। और एक और सवाल भी ऐड कर लें कि आप हेल्थ एक्सपर्ट ना होते तो फिर क्या होते? देखिए मैं डॉक्टर तो था, मगर मैं आपको बताऊं बाय नेचर मुझे हेल्थ में ही जाना था। अच्छा, बाय नेचर ही। क्योंकि ये तो दैट से एक हमारे एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बन जाओ। खैर मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। मैं होस्ट ना होता तो मैं क्रिकेटर होता। हाँ, तो मैं क्योंकि अब मैं बाय द टाइम आई एम 43। ओके। तो बाय द टाइम मैं देखा मैं एक जनरेशन जितना मैंने हेल्थ एंड फिटनेस में, तो मैं अगर डॉक्टर नहीं होता तो मैं फिटनेस में ही होता, बल्कि और अच्छे तरीके से होता जी। ओह, तो ये इतना मतलब आपको लगाव था। और आज शायद आप देखिए एक होता है ना, सचिन तेंदुलकर बना ही क्रिकेट के लिए है। हाँ, बिल्कुल। आप बोल सकते हो उसके लिए, बिल्कुल, यार बिल्कुल, ये बस अब बना ही अच्छा बैट्समैन था, ये बना ही इसके लिए था, इससे और कुछ। आप बने ही डॉक्टर थे और हेल्थ एक्सपर्ट है ना। बिल्कुल यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोगों को ट्रेन कर चुके होगे आप? काफ़ी हो गए। मतलब मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे अभी है ज़्यादा मैं ओल्ड एज वाले और जो यंगस्टर को भी करता हूँ, मगर यंगस्टर थोड़ा सा वो मतलब मेरे साथ नहीं चल पाते ना, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है। तो जब नहीं करते वो रिजल्ट नहीं आता है। सर, किसी से मोटिवेटेड थे? जी, किसी से मोटिवेटेड थे? नहीं, मोटिवेशन तो अब मतलब होती है जो अब फिटनेस में जो लोग काफी नाम कर चुके हैं। अभी एक का तो नाम लेना मुश्किल होगा। अब मैं जरा आपसे वो सवाल पूछ लेता हूँ ना, हर आदमी का जो मसला है ना, शायद मेरा भी था, यार हमारा ट्रेनर अच्छा नहीं है, यार वो हैवी हमें वो अपने तरीके से चलाता है, पता नहीं इसको आता भी है नहीं आता, फिर नहीं करो तो डांट देता है। आपके साथ भी ऐसे स्टूडेंट होता है? आपसे मसला है? नहीं, मैं पोलाइटली चलता हूँ, नहीं अच्छा। मैं उनको खुद कन्विंस करता हूँ। मैं कहता हूँ देखें आप अगर एक्सरसाइज कर रहे, मैंने कहा हमसे कई ज्यादा एक्सरसाइज लेबर करता है, उनके मसल्स क्यों नहीं बनते? हाँ, सही। कोई ना कोई चीज़ है ना, फिर उनको बताना पड़ता है थ्रू रिसर्च कि आपकी एक्सरसाइज 30-40% तक वेरी करती है। बाकी तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन आप बढ़ाएंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, मसल बिल्ड होने लगेंगे। अगर आप डाइट कैलोरी डेफिसिट पे जाने लगेंगे, वेट रिड्यूस होने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं देखें कैलोरी डेफिसिट या जो हम अब कर रहे हैं, हमारे दीन ने तो ये बहुत पहले बता दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे एक हिस्सा वो क्या था, बेसिकली दैट वाज द कैलोरी डेफिसिट। और वो क्यों जरूरी है? मैं खुद कैलोरी डेफिसिट में रहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं मुझे, क्योंकि वेट तो नहीं कम करना। 100, 200, 300 कैलोरी। एक नॉर्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए कितना वेट होना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है, इसके लिए कुछ वो होती है हमारे जैसे एज फैक्टर है, BMI हमारा एक होता है फॉर्मूला, उसके साथ वेट एंड हाइट के साथ आप वो निकालते हैं, एज, वेट एंड हाइट। मैंने जब शादी की तो फर्स्ट टाइम एक नॉलेज में आपका इजाफा होता है। हम गए मियाँ बीवी डॉक्टर्स के पास, तो मेरी वाइफ से उन्होंने सवाल पूछा डॉक्टर जाहिदा ने कि बीबी आपका वेट कितना है, वेट करें। तो उन्होंने वेट किया, बोला भाई आपका वेट तो 50 है, तो आपको प्रेगनेंसी गेन करने के लिए वेट। अब मैं फर्स्ट मैंने कहा ये क्या होता है? अच्छा भाई
बोले आपको वेट बढ़ाना होगा। भाई कितना करना होगा वेट? अगर आप इसको 56 या 55 से ले जाएंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ये एक अच्छी हेल्दी माँ का वज़न इतना होना चाहिए। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि और वो जो 70 या 75 की खातून या फिर उसका एंड क्या है? बोलिए नहीं, फिर ज़्यादा वो मोटापे भी नहीं जाना, फिर वो और डेंजर जोन है। तो अच्छी माँ के लिए 55-60 किलो का वज़न लाजमी होना चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है ना। अब जो भी वो खातून थी, अगर उनकी हाइट जस्ट लेट्स सपोज 5.4 थी, अब 5.6 थी। अब यूएसए में जाएंगे, वहाँ 6+ भी होती है, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो 50 के फ्रेम में नहीं आएंगे। अच्छा, फिर विद एज पर हाइट स्टार्ट में ही मैंने प्रोग्राम में बताया था कि अगर सर और मेरी हाइट बराबर है तो इट डजंट मीन कि हमारे वेट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारी टाइप्स हैं। मैंने बताया था ना, एक एक्टोमॉर्फ होता है, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, कि आपके फ्रेम और बोन्स, अगर मेरी बोन्स और फ्रेम थिक है तो मेरा 5 या 7 या 8 केजी ज़्यादा ही होगा। अच्छा सर, मिस कैरेजेस का भी रेशो बहुत ज़्यादा है। एक जो वुमेन है जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं उसमें कम होता है इनफैक्ट, और ये है कि जो घर में जिसने कोई हैवी चीज़ उठा लिया है उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये क्यों? ये देखें, ये एक परसेप्शन है, बल्कि अब तो मुझे गायनी का तो इतना नहीं, मगर मैं कहता हूँ बल्कि स्कॉट्स तक की इजाज़त दे दी कि वो तो आप करें कि आपके लिम्स और स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप जो है अच्छी एक्सरसाइज, क्योंकि लिम्स जो है सबसे बड़े, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा एक आपके अंदर पार्ट है बॉडी का। हाँ, एक वो डॉक्टर आए थे, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे ना। वो ये कह रहे थे कि आजकल हमारी जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, जो हाउस वाइफ है, वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो उनको तो धूप ही नहीं मिलती है ना। हाँ, उनको वो फिर एक्सरसाइज भी नहीं करती। अच्छा, फिर वो उन्होंने घर में भी मासियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, वो कोई बस सोती हैं, खाती हैं, सोती हैं, खाती हैं, टीवी देखती हैं बस। जब आपकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है करने को, तो फिर भाई रिजल्ट तो फिर वो नेगेटिव भी तो आएंगे ना। एंजाइटी और डिप्रेशन में ही जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, और फिर उसमें ओवर ईटिंग करता है अपने आप को, मूड को खुश करने के लिए, हालांकि वो कभी खुश होता नहीं है। बिल्कुल सही है। मैसेज क्या देंगे नौजवानों को और उस कराची वाले नौजवान को कि जो सारी रात जागता है, सुबह सोता है और फिर वो सिर्फ फास्ट फूड पे बेचारा रहता है? बस मैं अब रिसर्च से भी अब ये साबित हो गया कि ह्यूमन बीइंग जो है हम मैकेनिकल हैं, हम चलने फिरने के लिए बने, हम रेस्ट के लिए नहीं बने। वी आर द मैकेनिकल, मतलब हम प्रोडक्ट हैं, मतलब हमें मूवमेंट में रहना चाहिए। देखिए, अगर एक एजेड पेशेंट है तो उसकी डाइट भी कम हो गई होगी, वो उसके हिसाब, मगर एक यंग हेल्दी है, उसकी डाइट कैलोरीज अच्छी खासी सरप्लस पे चल रही है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो दैट ज़्यादा फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी शुरू होगा। अच्छा, फिर क्या होता है, आप जब रात को देर से सोते हैं तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होता है कि हमारे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन हमारे जो डिप्रेस हमें करते हैं जो रात को 10 अब बजे जैसे से हमारे 4 बजे तक रिलीज डोपामिन, सेरोटोनिन जब भी आता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं रात की और सुबह फ्रेश होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप रात को लेट सोएंगे, भले आप उसके बाद 10 घंटे की नींद ले लें, तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा तो एक्सरसाइज आप कितनी भी करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी हार्मोन से कंट्रोल हो रही है, हार्मोन से कंट्रोल होती है। और सर फिर आप टाइम पे सोएं, ये रात को घूमना फिरना और ये फास्ट फूड से परहेज करें। अच्छा सर, और अगर कोई जिम स्वीट का बहुत, क्योंकि देखिए हमारी वो अब नेचुरली अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे जो हमारे फॉर फादर वगैरह, वैसे मैं चाय बहुत पीता हूँ, चाय आप पिए, मगर आप या तो विदाउट शुगर पिए या अगर ले लें, वैसे कोई इसमें हर्ज नहीं है। मैं खुद जो स्वीटनर्स होते हैं, कोई मुझे 7-8 साल हो गए लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बिटर चाय पी के ना फिर आप स्ट्रगल करते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो सुबह मेरी होती है वैसे नॉर्मली 11-12 बजे और रात मेरी होती है 1-2 बजे तक, तो 6-7 कप तो कहीं नहीं गए। नहीं, ये नहीं कि सबसे ज्यादा आपकी जो मॉर्निंग इतनी देर से नहीं होनी चाहिए, है ना। मॉर्निंग इवन कल संडे में 6:30 पे उठा हूँ। ओके। अच्छा सर, अगर कोई क्या नाम है जिम नहीं जा सकता, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, तो वो नॉर्मल अपनी जिंदगी में क्या करे, वॉक वगैरह करे? यही कल एक क्वेश्चन हो रहा था, हेल्थ पे तो कोई खर्चा ही नहीं। अच्छा, सही, ग्रूमिंग करने में हमें ड्रेसिंग पार्क बना नहीं है, फुटपाथ है, आप चलना शुरू कर दें, कोई सिर्फ करने वाला हो सर। और दूसरी बात है, आपने खाने को जो है अच्छे तरीके से कैलोरीज को कम ही करना है ना आपने, बल्कि बचत है उसका, तो बचत होती है, खर्चा नहीं है। क्या बात है, अच्छी सेहत के लिए सर पैसे नहीं लगेंगे आपके। आपने शुगर छोड़ लें, हाँ, आप कार्ब्स कम करेंगे, रोटी कम खाएंगे थोड़ी बहुत। अच्छा सर, नमक का भी कहते हैं, नमक कम करना है, नमक भी अच्छा नहीं है, खास तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको कार्डियक इश्यूज होते हैं। चले एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हम आपको दूसरे मेहमानों से भी मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब, आपने हमें हेल्थ टिप्स दी, अच्छी अच्छी बातें हमारे नौजवानों को बताइए जो हेल्थ की परवाह नहीं करते, जो हम भी कम करते हैं, लेकिन यार करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।
ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سر خوش آمدید. اور اس وقفے میں ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے. آپ ٹرینر ہیں سر, ماسٹر اور لائف کوچ ہیں آپ. اب آپ کی کیا کیا خدمات ہیں اور کیا کیا سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں, آج ہم آپ سے بھی پوچھیں گے. ون اینڈ اونلی احسن قدیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے صبح سویر میں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف لائف کوچ؟ زبردست ہے نا, بالکل, کتنا امپورٹنٹ سوال ہے. فنٹاسٹک کوشچن. ہم اس ڈیفینیشن سے پہلے تھوڑی ڈسکرپشن پہ جاتے ہیں. رائٹ, کہ ملٹیپل فیلڈ ہے, ملٹیپل پیشنٹس پہ تمام جو کریوسٹی ہے ینگسٹرس کی, یوتھ کی یا پروفیشنلس کی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک اٹیمپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وی آل آر کیوریس اور ان اے رش, ہمیں بس بھاگنا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کدھر جانا ہے. رائٹ, لیکن ہم کسی سے انسپائر ہو کے کوئی ایک ڈیسیجن لے بیٹھتے ہیں اور وہاں ہم ریس اسٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. دین ایٹ دا مڈ آف دا ریس ہمیں پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم رائٹ وے پر ہی نہیں تھے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری یہ فیلڈ نہیں تھی یا ہم اس کے لیے نہیں بنے تھے. رائٹ, تو یہ تمام چیزیں. ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ کہ سم ون وہ پرٹیکولر فلاں فیلڈ کے لیے بنا ہے, آپ کیسے ریکگنائز کریں گے؟ زبردست, یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرے ٹائپ سے ڈفرینٹ ٹائپس کے, لائک پیپلز آر ناٹ کمپلیکیٹ, دے آر جسٹ ڈفرینٹ. رائٹ, تو یہاں 16 ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک آئی ایم ایکسٹروورٹ, میں بولنا پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں لوگ مجھے سنیں. اسی طرح لوگوں کی نیچرز ہوتے ہیں, کوئی سینسیبل ہوتے ہیں, کوئی انٹیوشنز پہ کام کرتے ہیں, کوئی ججنگ ہوتا ہے, تو کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے. اب ایک انٹروورٹ کینڈیڈیٹ کو آپ اٹھا کے مارکیٹنگ فیلڈ میں لے کر آ جائیں تو مائٹ بی پاسبل کہ وہ کوئی فورسفلی اٹیمپٹ کر لے, یا لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوگا اس فیلڈ میں, چاہے وہ مارکیٹنگ فیلڈ ہو, چاہے وہ اس طرح پبلک کمیونیکیشنز ہو. اب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کینڈیڈیٹس وہ ہے کون, اس کا آئی کیو کتنا ہے, ایموشنل کتنا اسٹرانگ ہے بندہ. ہم ایموشنل ہی اس پوائنٹ پہ اگر ویک ہوتے ہیں تو مینس دیٹ کہ ہمیں لیڈرشپ اسٹائل میں پھر پہلے ایموشنل اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اس کے ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ ہم سرٹیفکیشنز کروا رہے ہوتے ہیں. بہت کم جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف آتے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا ہمیں فیئر ہوتا ہے ایک, اور ہمیں گھر کا پریشر ہوتا ہے یا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر ہی بننا ہے, اور کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف بچے نہیں آتے ہیں, اسٹوڈنٹس وغیرہ. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پیرنٹنگ کرنی ہے. ڈفرینٹ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اس طرح ہم اوپن ڈے یا سیمینارز ہوتے ہیں, اس میں ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں, پیرنٹنگ سیشن. اور اب جو کمیونٹی ہے جو پیرنٹس کی, وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ پریفر کرتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کو. سم ہاؤ کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں. بالکل, ہم یہ پریفر کریں گے کہ آپ اپنے پاس کریئر کاؤنسلر ایگزیکٹ پراپر وے میں بٹھائیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کیمپس میں کریئر کاؤنسلر ہے, بٹ دے آر ایگزیکٹلی ناٹ اے کریئر کاؤنسلر. ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ اس کینڈیڈیٹس کو باہر بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کریئر کاؤنسلر ہیں. تو یہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, سوری ٹو سے. کریئر کاؤنسلنگ کیا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کے ٹیلنٹ کیا ہے. اب وہیں پر فار ایگزامپل میں نے سجیسٹ کیا آپ کی جو ٹاپ 5 اسکلز ہیں, آپ کے بیسٹ پروفیشنز ہیں, وہ یہ ہیں. اب جیسے مارننگ شو اس طرح مجھے آرگنائز کرنا ہے, یا میں ایک اچھا آرگنائزر ہوں, اچھا لیڈر ہوں. رائٹ, اس لیڈرشپ میں کہیں اب مجھے کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, کہیں میں اسٹک ہو رہا ہوں, کہیں پہ کوئی پوائنٹ ہے جہاں پر مجھے لگ رہا ہے میں پاؤز ہو گیا. جب میں میڈیا انڈسٹری میں تھا ہی نہیں, میں زندگی کی پہلی نوکری کے لیے جب میں گیا, کمپنی نے daraz.pk, تو 2015, تو میں جب گیا تو مجھ سے اس صاحب نے پوچھا کہ ساجد صاحب آپ تو فریش ہیں اور پھر آئے ہیں ٹیم لیڈر بننے یہاں, تو ہم کیسے رکھیں آپ کو؟ میں نے بولا یہ تو آپ کو پتہ ہے.
تو کہ لگا آپ آخری میرا آپ سے سوال ہے, ویسے سب پوچھ لیا آپ سے, آپ میں کچھ اچھا ہے جو آپ کو پتا ہو کہ یار میری شخصیت میں یہ چیز اچھی ہے؟ میں نے کہا سر ابھی تک جو میں نے خود کو چیک کیا ہے, میں اچھا بول لیتا ہوں. صحیح. کا پکا اچھا بول لیتے ہو, آپ کو یہ پتا ہے؟ میں نے کہا میں اچھا بولتا ہوں. تو انہوں نے مجھے فوراً رکھ لیا, میری ہائرنگ ہو گئی, اور مجھے کام ہی وہی دیا بولنے کا کہ یار یہ آپ نے بولنا ہے. اور وہ پرٹیکولر ایک مجھے لسٹ دے دی کہ آپ نے ان بیوروکریٹ سے, ان میجر سے, یہ جو ہماری کسٹمر سے, ان سے آپ یہ مغز ماری کریں اور یہ آپ دیکھیں. رائٹ. پھر مجھے کسی نے کہا جب تم اچھا بولتے ہو تو ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا اچھا بھائی میں ٹی وی پہ آ جاتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا, مجھ سے اگر آپ کوئی ٹیکنیکل کام کرواؤ گے وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جی بالکل دیکھا جائے لیکن بہت سارے لوگ ٹیکنیکل میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ کسی نے نہیں کی, یہ آپ کو یہاں ایک میں ویلیو ایڈ کروں گا, وہ جو لیڈر تھا آپ کا جس نے آپ کی سلیکشنز کی, اسے یہاں پر اپریشیٹ کرنا ہے. اچھا. کیونکہ انڈسٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ہیں ایکسٹروورٹ, آپ کی پرسنالٹی الگ ہے, لیکن آپ کو جاب دیا جاتا ہے کچھ اور فیلڈ کا. کیوں کہا جاتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے. یہ بدقسمتی ہے. میں آتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری انڈسٹری میں. یہ میں آتا ہوں امپورٹنٹ, وہ اس لیے کہ نا ہم ہوتا وہ اچھا بیٹسمین ہے, ہم اسے توقع کرتے ہی اچھی بالنگ کرے گا. وہ بھائی وہ نہیں کر سکتا اچھی بالنگ, لیکن پھر اس کے ماں باپ بھی کہیں گے نہیں تو اچھا بالر بنو. بھائی وہ نہیں بنے گا, وہ جو کر سکتا ہے آپ اس سے وہ کروائیں جس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خود ادا صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیز محسوس کر پاتے ہیں, اور بہت سارے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے نا مجھے من چاہا کام جب ملے گا تو شاید میں اس میں اور مہارت میری نکھر کے سامنے آئے گی. یہاں پر دو فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کینڈیڈیٹس خود کو بھی اتنا ڈیموٹیویٹ اور پریشرائز کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جاب دے دیں, میں کچھ بھی کر لوں گا, مجھے جاب دے دیں. میں ان تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ خود کو جانے پہچانے, ٹیلنٹ ہے, آپ آئیں ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو کیش کر کے دیں گے, ہم بتائیں گے کس طرح. ہر فیلڈ میں اماؤنٹ ہے, ہر فیلڈ میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں, بٹ پرپز یہ کہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. آپ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. قدیر صاحب, اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ساتھ قاسم چوہا صاحب بیٹھے ہیں. سر مایوسی ہے نوجوانوں میں, پاسپورٹ آفس کے باہر آپ کو نوجوانوں کا رش ملے گا, بھائی کہاں جا رہے ہیں, یا اس ملک میں کچھ نہیں رکھا, بھائی باہر جانا ہے. کیا واقعی ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں؟ بالکل. باہر جائیں, بالکل. یا کچھ نہیں رکھا؟ نہیں. وجہ کیا؟ میرٹ کا قتل, بالکل, یا پھر اپرچونٹی ہی نہیں ہے, اور پھر وہ ایک پرٹیکولر یہ کہیں کہ ایک گروپ ہے بس ان کے لیے. عام آدمی کہاں جائے؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ یہاں پہ میرٹ تو آپ کے سامنے ہے, مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرٹ آپ کے سامنے ہے. سر لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے آپ بھی میرٹ پر آگے آئے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ برا ہی ہو رہا ہے یا اس معاشرے میں برا ہی ہو رہا ہے, اچھے لوگ بھی تو آگے آ رہے ہیں. آپ ہیں سر قدیر بیٹھے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنے ٹیلنٹ کے بنیاد پر آگے آتے ہیں. بالکل, یہی بات ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ آگے آئیں. مجھ میں ٹیلنٹ تھا, میں آگے آیا, تو آج میں ایک سیٹ پر ہوں. جی بالکل, اور یہی بات ہوتی ہے, کوئی آپ کو دیکھو پلیٹ میں تو رکھ کر نہیں دے گا, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. بالکل, آپ کو آگے آنا چاہیے, ٹیلنٹ ہے, آپ آگے آئیں اور اپنے آپ کو کیش کریں. بالکل, اور جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم باہر کے ممالک بھی جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہمارے بچوں کو یہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, وہاں پر تو اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا, باہر ایتھکس ہے, باہر رسپیکٹ ہے, یہاں نہ ایتھکس ہے نہ رسپیکٹ ہے. لیکن ہم اگر اپنے سوسائٹی سے اگر کمپیریزن کریں تو کچھ چیزیں یہاں ہیں جو وہاں بھی نہیں ہیں. وہاں صرف فیملی, اگر ہم فیملی کو ایکوموڈیٹ کر کے لے جائیں تو ہم وہاں ہیپی ہیں. کیا بات ہے, وہاں ڈسپلن ہے. میں آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے بھابھی خواہش مند ہے کہ میں اور میرا میاں چلے جائیں یہاں سے, ایسا ہی ہے؟ بالکل. دیکھیں یہاں پہ نا مطلب کریئر نہیں ہے. اچھا, آپ بہت اچھا پڑھ لیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر کی اسکلز خود دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ سکتے نا, لیکن تو میں کوئی پرسن آپ کو جج نہیں کر سکتا. آپ دونوں میرے لیے قابل عزت ہیں. جو وطن کی مٹی کی خوشبو ہے, اور میرا ایک تجربہ رہا, جب میں نے ٹریولنگ کی بہت ساری کنٹریز میں کیا, تو پھر میں اب یہ مثال دیتا ہوں یہاں پہ اپنے لوگوں کو. یار میں نے کہا ایک چیز پاکستان میں تو بڑی بہترین ہے. کیا ساجد بھائی؟ میں نے کہا یار ہم یہاں پہ رشتے بنا دیتے ہیں, ہم انجان لوگوں کو گلے لگا دیتے ہیں, ہم ہر آدمی کو بیٹھتے بولتے کھانا کھا, چائے پی, تجھے اور کچھ چاہیے, اچھا یہ پیسے بھی لے جاؤ. سر باہر ایسا کچھ بھی نہیں. سوری ٹو سے, اب میں اس میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو.
हम यहाँ हर आदमी को गले लगा लेते हैं, हर आदमी पे एतबार कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा डसने वाला भी वही होता है। हाँ, ये तो फिर एक सोसाइटी का फैक्टर एक नॉर्मल है, फैक्ट ये तो भी फिर वो चल रहा मौला है अली का यहाँ। कॉल है ना कि जिस पे जिसको एहसान आप करो उसके आगे शर से बढ़ा बचो। रहे हैं, जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं वही आपको पीछे खींच रहे हैं। ये तो है। हाँ वही होता है। और ये अब मैं आपको तो मैं और आसान कर देता हूँ बीबी, अब आप लोग की बात ही ऐसी कर दी। बहुत ज्यादा अच्छा पता क्या होता है, जिस सीट पे हम विराजमान इस वक्त बैठे हैं ना, हाँ, होस्ट की निशिस्त पर, अक्सर बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास होते हुए कहते हैं यार यहाँ बैठना है, यहाँ बैठने हम उसको बोलते हैं आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन बेटा मेरा ख्याल कर लेना यार। तो उसकी प्रायोरिटी में ये नहीं होता कि मैं इससे आगे निकलूं, मैं कुछ बन जाऊं, इसको कैसे हटाना है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अच्छा, एक टीचर आपके पास बैठी होगी, एक इंजीनियर बैठा होगा, आप टीचर को फोकियत नहीं दोगे, इंजीनियर को दोगे। आपको ये नहीं पता वो इंजीनियर बना कहाँ से, टीचर से पढ़ के वो इंजीनियर बना। हाँ। अच्छा अब ये बाहर अगर के मुल्क में हम जब टीचर देखा जाए तो ये जो हमारी सोसाइटी पीछे से हमारी पेरेंटल ट्रेनिंग चलती आ रही है कि हम अब हमें बताया जाता है ये तुम्हारा चाचा अच्छा है और तुम्हारी कोई ये वाली खाला अच्छी नहीं है, तो ये तो चीजें वहीं से आ रही हैं। स्पेशली आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल अच्छी नहीं तो है। अब वो अब हमें जब एक चीज हमारी उसमें आ रही है, हमारी जनरेशन टू चलती आ रही है, तो फिर हम तो यही कंपैरिजन करेंगे, टीचर अच्छा नहीं है, इंजीनियर अच्छा है, जो है डिफरेंसेस खुद डाल रहे हैं। हाँ डिफरेंस रिश्तों से डिफरेंसेस खुद डाल अर्ली स्टेज में जो इंडक्शंस की जा रही है, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या टीचर्स प्रोग्राम या टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस, तो इन तमाम में हम वैल्यूज को ऐड नहीं करते हैं। हम भले एक टीएनए फॉर्म कर लेते हैं, हम एक एनालिसिस कर लेते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लेंगे, उसके बेस पे हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमने कहीं पे डिसिप्लिन की बात नहीं की, हमने कहीं रिस्पेक्ट की बात नहीं की, हमने एथिक्स की बात नहीं की। अगर ये तीनों चीज पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान से कोई नहीं जाएगा। अब आप ये देखिए, मैं टीचर रह चुकी हूँ, आई एम मॉन्टेसरी डिप्लोमा होल्डर। ठीक है। हम एक 3 साल के बच्चे के साथ भी जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हम पहले उससे परमिशन लेते हैं। ठीक है। बेटा आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं बिल्कुल, हो। हाँ, अगर वो बच्चा हैप्पीली उसमें इंटरेस्टेड होता है तो हम उसको एक्टिविटी में शामिल करते हैं। अदरवाइज हम उसको बोलते नहीं आप बैठ के देखो। जब वो बैठ के देखता है तो उसका इंटरेस्ट जब डेवलप होता है देन वो उसको ज्वाइन करता है। अदरवाइज वो उसको ज्वाइन नहीं करता। ट्रेनिंग नहीं है ना हमारे पास, पेरेंटल ट्रेनिंग नहीं है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। ट्रेनिंग्स बहुत हैं, जिसको देखो वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल ट्रेनिंग्स करवाएं। आप तमाम कोर्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप हमसे हमें अप्रोच करें, हम आपको तमाम चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन खुदारा वो चीज कंटेंट जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें वैल्यू क्रिएट हो। एक वैल्यू हो ना कि अगर आज एक कैंडिडेट यहाँ मौजूद है तो वो 1 घंटे के बाद उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होने जा रही है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने एक स्टार्ट लिया था अपना एक ऑर्गेनाइजेशन आसान करियर, जो माइंड साइंसेज। अब माइंड साइंसेज क्यों ऐड है यहाँ पर? क्योंकि 99% यहाँ कैंडिडेट्स प्रोफेशनल्स मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हैं। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई। अभी ई चालान की बात हुई थी, पूरे कैंडिडेट्स ने ई चालान यार आपका फोकस कुछ और है। क्या बात? ई चालान आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवा रहा है। आप अगर आप हमेशा फोकस करोगे वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो वो चीज आप वहीं पर रह जाओगे। आप कहते हो मैं बैक हूं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, आप तो खुद वही एक्टिविटी कर रहे हो ना। अगर ई चलाने डिसिप्लिन आप लेकर आओ, डिसिप्लिन सब हट जाएंगे। आप हटा दो सारे कैमरास, लेकिन डिसिप्लिन तो लेकर आओ। आप रॉन्ग भी वही होते हो और आप फ्रस्ट्रेट भी हम पर होते हो। अब गाड़ी आप रॉन्ग भी लेकर आ रहे हो और आपने हम पे ही शाउट करना है, गाड़ी आपने हमारी गाड़ी को हिट की, लेकिन आप ही हमसे लड़ने बैठ गए। तो मींस दैट ये तमाम चीजें जो है ना, ये रिस्पेक्ट नहीं है। आज कोई हमारे टाइम में कि कोई अगर एजेड है, कोई इस तरह बुजुर्ग है, तो हम रिस्पेक्ट दे देते हैं, लेकिन आज के कैंडिडेट वो टीचर्स को क्लास में रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो बुजुर्ग को नहीं समझते। ये बहुत खूबसूरत बात की। और फिर एक दुख होता है कि जब हम बाहर से पढ़कर आते हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों की तरबियत करते हुए, फिर हम जब जाते हैं बलूचिस्तान, सिंध, KPK के रूरल एरियाज़ की तरफ, तो सर वहाँ पे बहुत करने की ज़रूरत है। मेरा 20 साल बाद जाना हुआ तो मैंने देखा यार ये चीज़ें वही की वही हैं। मतलब इन लोगों की मेंटलिटी वैसी की वैसी है। शायद हम जब बच्चे थे तब ऐसा नहीं था, अब शायद उससे ज़्यादा ये वडेरा कल्चर, चौधरी कल्चर, मलिक कल्चर के बच्चे शौकीन हैं। शायद ये जहनी गुलामी है। मैं इस पे आपका टेक चाहूँगा। बिल्कुल। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो कोयटा से है, बलूचिस्तान जिसे पासमानदा इलाका कहा जाता है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ कोयटा से है, बलोच घराने से। मेरा आबाई ताल्लुक़ सखर से है, स्कूलिंग से मैं यही रह रहा हूँ। लेकिन मैं जब मेरा जाना हुआ 15-20 साल बाद, तो मैंने वहाँ देखा यार, जब हम 5वीं 6वीं से यहाँ से चले गए थे
شاید تب کچھ معاملات بہتر تھے تو اور بگڑ گئے. تو یہ اس یہ سے کیا سب سے ہوا؟ بڑا جو ہے نا ہمارے اندر خود یہ ایک فالٹ ہے. آپ سکھر سے آگے کراچی، آپ نے یہاں پہ پڑھے، آپ یہیں پہ آپ کا سارا فوکس ہے. آپ اپنے بیک پہ فوکس دیں نا، آپ سکھر میں رہ کے فوکس دیں. اب آپ ایک اکیڈمی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 اکیڈمی ہیں میں وہاں کراچی وزٹ میں. کرنے کے گھومنے کا، میں نے وہاں لوگوں کی مینٹلٹی چیک کی تو میں نے کہا آنے والے جو بچے تھے نا نوجوان، ان کے جو رول ماڈل تھے وہ فلاں وڈیرے کا بیٹا میرا رول ماڈل ہے، فلاں میرا میرے وڈیرا رول والد ماڈل صاحب ہے. خود سینیٹر ہیں پر میں کہاں پہ بیٹھا ہوں. دیکھیں ہاں اب لیکن میں نے وہ دیکھا کہ یار یہ کیسے، ان کو تو ابھی اپنے بارے میں ہی نہیں پتا. بالکل. یہ تو ابھی تک تو ذہنی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ وہاں سے نکلیں گے، آگے بڑھیں گے تو کچھ آپ دیکھیں گے نا. تو وہ کیوں نہیں نکل رہے لوگ؟ ان کو کیا کہیں گے؟ نکلنا چاہیے، آگے نکلیں گے تو وہ آگے کچھ حاصل کریں گے. ابھی نکلیں گے نہیں، وہی وڈیرا نظام میں بیٹھیں گے، سرداری کلچر میں بیٹھیں گے. اچھا ان کو اچھا لگ رہا ہے وہ، بالکل. اور وہ اس کو وہ کہہ رہے کہ کمال ہے بھائی. وہ میں تو جاتا ہوں ان کے، وہ بیٹھا رہتا ہوں ان کے پاس، وہ بڑے اچھے آدمی، اچھے اچھے فیصلے کرتے. میں نے کہا یار یہ دیکھ فیصلہ دیکھیں، کوئی ایسی بات نہیں، فیصلہ تو آپ کا ایک جج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ گھوم پھر کے بات وہیں پر آ جاتی ہے. آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ آگے آئیں، اپنے آپ کو کیش کریں. میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ میں میسج یہی دوں گا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ آئیں، آگے آئیں، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور آگے پاکستان کے لیے کچھ کریں. پاکستان کی آپ کیا میسج دیں گی بی بی، اسپیشل ان خواتین کو جن میں تسلیم کی کمی ہے؟ تسلیم کی کمی ہے، بس یہی بولنا چاہوں گی کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ان کے اندر، کہ آپ کو اپنے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ مجھ سے بیٹر کوئی نہیں ہے. خود پہ کانفیڈنس ہو. بھلے آپ کے یہ بھی نہیں ہونا سامنے چاہیے کہ کوئی مجھ سے ماڈل better کھڑی کوئی ہے، ہے. ایکٹر کھڑی ہے، ایگزیکٹلی کچھ بھی ایسا ہی ہے. ہے. آپ ویلیو تو دیں، Value سب دیں. بیٹھے، سب بیٹھے. سب بیٹھ کریں. آپ اپنے آپ کو خود ویلیو دو. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ایک وقفہ لیتے ہیں سر، اور وقفے کے بعد آپ کو دوسرے مہمانوں سے بھی ملواتے ہیں. تعمیر اور ترقی کے سفر میں جو اور لوگ آئیں گے وہ بھی اپنی ویلیو ایڈ کریں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ، سنہری روشنی کے ساتھ، سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر، آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ، سنہری روشنی کے ساتھ، سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر، آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سر خوش آمدید. اور اس وقفے میں ہم ٹیلی فون کال بھی شامل کریں گے اور مہمانوں سے بھی بات کروائیں گے. ایک نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ نئے مہمان کا تعلق عوام پاکستان پارٹی سے ہے. آپ عوام پاکستان پارٹی سے الیکشن میں حصہ بھی لے چکے ہیں. ہمارے پیارے بھائی ون اینڈ اونلی سلمان ہاشمی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئے. بیٹا آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ اچھا سنائیں کیسے ہیں؟ سلمان پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نا سیاست میں کیوں آئے؟ سیاست میں کیوں آیا ساجد بھائی؟ سوال تو بہت اچھا کرا ہے. ہاں سیاست میں پچھلے ماضی میں یعنی فیملی سے بھی کچھ لوگ بلونگ کرتے تھے. اچھا انسپائر تھے کہ میں نے بھی آنا ہے. اور آنے کی جو خاص ایکسپریشن ہے نا میری، وہ آج کے حالات اور مد نظر رکھتے ہوئے جو غربت ہماری ہے نا آج کی دوسرے ممالک سے بہت کئی گنا زیادہ. آج ہمارا ملک ماشاءاللہ سے ہر چیز میں آگے ہے. جدید فورسز ہے، جدید ہمارے پاس، یعنی کہہ لیں کہ کھانے پینے کی سب سے ایشیا کا ملک یہی ہے بڑا. لیکن آج ہماری غربت بہت ہے. کرنسی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. صحیح ہے. اس کی منشیت جو ہے وہ بہت پیچھے چلے گئی ہے. آج ہم جو 70 سال آگے جانا تھا نا وہ 70 سال پیچھے چلے گئے. تو لوگوں کو دیکھ کر تو پھر وہ قصوروار آپ سمیت، کیونکہ اب آپ سیاست کا حصہ ہیں، بالکل ایسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے سیاست کر رہے ہیں، الیکشن میں حصہ بھی لیا آپ نے، کیا سیاست دانوں کا قصور نہیں ہے؟ دیکھیں سیاست دانوں کا جہاں تک ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا ہے. ہاں اچھا سیدھی بات ہے. ہاں عام آدمی کا. عام آدمی کا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ووٹ ہم دیتے ہیں، نومینیٹ ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ اس نمائندے کو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ووٹ جو دیتے ہیں وہ لالچ میں دیتے ہیں.
سر لیکن یہاں پر یہ بھی تو ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک پیچھے سے وہ آ رہی ہے پارٹیز آ رہی ہیں جو کہ آگے سپیس بھی نہیں دے رہی ہیں اچھے لوگوں کو, تو وہ پھر ہمیں تو پھر انہیں لوگوں کو چننا پڑتا ہے نا جو آگے آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جیسے بھائی کا ایک سوال تھا, میں نے سنا تھا, بھائی نے کہا تھا اپنے آپ کو شو کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں آج پڑھا لکھا طبقہ نا ہار مان جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے, ماسٹر ڈگری کرے ہوئے بائک رائڈر ہیں, فوڈ پانڈا ہیں, ہار مان جاتے ہیں. ان کی آج کے دور میں اگر آپ 100 جگہ پہ سرکاری اپلائی کریں نا تو 1% آپ کو چانس ملے گا. مطلب یہ کہ سلمان کا کہنا ہے اپرچونٹی کا بڑا یہاں پہ فقدان ہے اور میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. ایک کال سر شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور یہ فون کال ہے میری پہچان پاکستان پارٹی کے رہنما محمد پنہ صاحب نے جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے پنہ صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. پروڈیوسر صاحب آڈیو بڑھائیے گا. پنہ صاحب, تعمیر اور ترقی کے سفر میں 27ویں امنڈمنٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ اچھا ہوا ہے؟ تعمیر ترقی کے لیے تھی اور ساتھ میں ہماری سیکیورٹی کے لیے. اس میں 2 چیزیں دیکھو کہ سیکیورٹی ضروری, یہ دونوں چیزیں جو ہے 27ویں ترمیم میں ہیں. ٹھیک ہے. میرے حساب سے تو صحیح ہوا ہے, بالکل ہمارا بالکل اچھا ہوا ہے. بالکل اچھا. اور پھر جو اس پر تنقید ہو رہی ہے, ان تنقید کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھو تنقید والوں کا اپنا رائٹ ہے, کرتے رہتے ہیں اور کریں گے بھی صحیح, کیونکہ کوئی بھی پاکستان میں آئین میں پہلے بھی ایسے ہوتے ترمیم میں, تو یہ تنقید والے جو ہے کوئی قانون کے اندر تو نہیں آتی. کہ باہر آج کل وہ کھلا بھی نکلے ہوئے ہیں, دوسرے بدلے نکلے ہوئے ہیں. دیکھو یہ وہ امینڈمنٹ نہیں ہے جو پرویز مشرف کے دور میں, یہ آئینی کورٹ ہے, آئینی ڈیسیشن. آئینی کورٹ سے یہ اس سپریم کورٹ سے دیکھو بڑا فرق ہے. وہ کوئی دوسری چیز تھی, یہ دوسری چیز ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ آئے ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے, وہ کسی کو منع تھوڑی کر سکتے ہو رائٹ. تھوڑے دنوں کے بعد یہ صحیح ہو جائے. اچھا ویسے پنہ صاحب, ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت العباد کی پارٹی میں کراچی سمیت ملک بھر سے بڑی بڑی شخصیات شمولیت کرنے کی خواہش مند ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل سر. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھو اے پی میں بھی پروگرام کیے ہیں بہت بڑے سے, اور شخصیت میں ابھی نام نہیں لے سکتے, جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو بہت بڑی شخصیت اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب آئیں گے تو کیا حکومتی کولیشن بنائیں گے یا اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ سیاست کریں گے؟ نہیں دیکھو ابھی تو ڈاکٹر صاحب آئیں گے اپنی پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے. حکومتی کولیشن تو جب بھی کوئی بنتی ہے آپ کے پاس کوئی اقتدار ہوتا ہے, حکومت آپ کو ابھی کیوں دے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائیے گا, میرا آخری آپ سے سوال ہے, کیا آپ کو کراچی کی سیاست میں اسپیس ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا. ابھی ہمارے کتنے بڑے, ہمارے صرف اس وقت تک جب بھی جلسے کرتے ہیں ابھی بھی کافی کیے ہیں, تو اس میں 3000-4000 تو لیڈیز ہیں. ابھی ہم نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا اور کریں گے انشاءاللہ اسی اس میں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ہمارے ممبر ہیں. اس کی کیوں نہیں ملے گی, سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی لوگوں کی خدمت کی ہے کراچی میں. نہیں تو پھر لیونگ پلینگ دیکھیں نا, لیونگ پلینگ فیلڈ کا بڑا مسئلہ ہے نا. سیٹیں وہی ہیں, امیدوار ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی ہے, سنی تحریک بھی ہے, تو پھر عوام پاکستان پارٹی بھی ہے, میری پہچان پاکستان پارٹی بھی ہے. تو پھر یہ سیٹیں تو وہی ہیں, بٹے کی کہاں کہاں. دیکھو ابھی بھی یہ پارٹیاں ہیں نا جو الیکشن لڑ رہے ہیں, جی یہ پارٹی میں ایسی بات تو نہیں کی ہے کہ مطلب سارے جتنے بھی پارٹیوں کو آپ نے نام دیے, یہ کراچی میں ایگزسٹ ہیں. ٹھیک ہے.
तो अभी हमारा तो हम किसी को पार्टी के लिए तो नहीं करते, हर कोई अपना अपना करेगा। अब आपके सामने पीटीआई वाले अवाम पाकिस्तान भी अभी नहीं है, तो जाहिर है किसी से इताद भी हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। इन पार्टियों में भी हमारे बड़े अच्छे लोगों का राब्ता है हमारे। तो क्या पीपल्स पार्टी आपकी हम ख्याल जमात बन सकती है? पीपल्स पार्टी देखो हम ख्याल बन सकती है नहीं बन सकती है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मतलब पीपल्स पार्टी के बड़ी आला क़यादत ने डॉक्टर साहब को ऑफर की, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, ये पुरानी बात है लेकिन ऑफर आई। तो नाम भी बता देना सर उस बड़ी शख्सियत का, पन्ना साहब। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत। अच्छा, कोई नाम अगर आप लेना चाहें? नाम तो रहने दे, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, नामों में क्या रखा है? चले ठीक है, क्या फरमा रहे थे वो? मतलब वो अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब से दोस्ती थी, सबकी है अभी भी है कि हमारा प्लेटफॉर्म पे अगर आप, तो डॉक्टर साहब ने कभी भी किसी के प्लेटफॉर्म पे अपनी सियासत करेंगे जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे सियासत करेंगे। डॉक्टर इशरत इबाद साबिक गवर्नर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। कराची में आपको स्पेस मिलता है नहीं मिलता, आने वाला वक्त बताएगा। सलमान, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, लेकिन अवाम आपको लगता है कि अब दिल नहीं चाहता किसी का वोट देने के लिए? साजिद भाई, आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे ना आज की तारीख के हिसाब से 165 पार्टियां हैं, एलिस्टमेंट। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि जितने भी पार्टी के सरबराह हैं ना, उनको अपना मंशूर ही नहीं पता। बताएं। सबसे पहली बात तो ये, उनको अपना मंशूर नहीं पता, उसकी वजह कि सब लूटने के लिए आए। नहीं, आपने अवाम पाकिस्तान पार्टी का चुनाव क्यों किया? शाहिद खाकान अब्बासी की शख्सियत देखकर या कि मुफ्ता इस्माइल साहब को देखकर? देखिए, मुफ्ता इस्माइल साहब तो एक टाइकून है ना, बिजनेस टाइकून है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक टाइकून है। वजह सिर्फ इनकी ये सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा, कोई उन पे ऐसा केस नहीं है। उनकी जो बातें हैं ना, वो आप अगर देखें, पीआईबी में भी जलसा हुआ है तकरीबन रिसेंटली 1 मंथ पहले। पीआईबी में सबसे बड़ा, जहाँ एमक्यूएम का गढ़ था, ठीक है, उससे पहले हमारा कारसास में हमारा सेक्रेटरीट है, ठीक है, वहाँ पे जलसा हुआ है जिसमें शाहिद खान, मुफ्ता इस्माइल साहब और कराची की तमाम जो शख्सियात हैं वो उन्होंने शिरकत की थी। सही। और जो कराची को ऑन कर रहे हैं वो इस टाइम पर मुफ्ता इस्माइल साहब और उनके बैग पे जो है वो अपना शेख सलाउद्दीन साहब हैं, जो एमक्यूएम के साबिक कौमी असम्बली मेंबर 2 बार रहे हैं। ऐसे ही वो कराची डिवीज़न के कन्वीनर हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है, आपने कहा कि इस पार्टी को ज्वाइन क्यों करा, इसकी वजह ये है कि इनके जो अल्फाज हैं, इनकी जो ताक़ूद है ना, वो मेरे को बड़े अच्छे लगे, सीधे साधे, और आवाम के लिए इन्होंने सोचा। देखिए, नून लीग आज भी वो क़यादत में होते ना, आज भी वो वज़रा होते कहीं ना कहीं के। वजह सिर्फ इसलिए नून लीग उनके जो उन्होंने आवाम के लिए सोचा था ना, उस पर वो उन्होंने अमल दरामद नहीं करा। ठीक है, उनकी वजह यही थी कि आपने आइन के लिए वोट लिया ना, वो जब आप कर ही नहीं रहे उस बात पे, आवाम के लिए आप सोच ही नहीं रहे, तो मैं इस पार्टी में नहीं चल सकता। उनके वो मुताबिक नहीं रही, इसलिए उन्होंने अपनी अलहदगी इख्तियार अलग पार्टी बना ली अवाम के मफाद के लिए। बिल्कुल ऐसी। तो फिर इसलिए सलमान भी उनकी पार्टी में चले गए। अच्छा, बच्चे भी आपके साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, क्या करती है? मैं स्टडी करती हूँ। किस क्लास में? सेकंड ईयर के पेपर दिए। अच्छा, सेकंड ईयर के पेपर सेकंड ईयर के पेपर दिए आपने? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट एक होता है, ये मेरा फेवरेट उस्ताद है, मुझे ये मिस बहुत पसंद है। टीचर कॉलेज में तो कोई नहीं, सेंटर में है मिस। मिस कौन सी है? मिस मुस्कान। मिस मुस्कान। अच्छा, और आगे किस फील्ड में ज्वाइन करना है? क्योंकि अब तो बस आपको फील्ड ही ज्वाइन करनी है। आगे तो आगे क्या बनना? बनने का इंजीनियर था। इंजीनियर है जी। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और आपको लगाव ज्यादा अब्बू से है अम्मी से है? अम्मी से।
दोनों से? नहीं अम्मी से। अच्छा, अम्मी से। हाँ, लेकिन मेरे को सपोर्ट बहुत करती हैं। अच्छा, ये बच्चा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेहान। जोर से बोले। रेहान। अच्छा, रेहान। अब्बू अच्छे लगते हैं अम्मी? इनको तो चीज के टाइम पे मैं अच्छा लगता हूँ। हैं? हाँ, अच्छा, बिल्कुल चलें। ऐसे। चीज के टाइम पे तो इनको जो चीज चाहिए, इन्होंने जो चीज ठान ली वो इनको चाहिए, और वैसे इनके लिए मम्मा है। चलें जी, बच्चे तो सर फिर बच्चे हैं, फूल बिल्कुल होते हैं, और ऐसे खतीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो बेबाक अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे थे, कितने लोगों की काउंसलिंग की होगी? सर 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, ठीक है। और इस 7 साल में तकरीबन कोई 1400 या 1450 कैंडिडेट्स को काउंसलिंग दिया, सेशंस दिया। कुछ माइंड साइंसेस के थे, कुछ हिप्नोसिस के थे, तो और तमाम अब भी मुझसे कनेक्ट हैं। और मैं प्राउडली कहता हूं कि मेरे पास आउट कैंडिडेट्स आज फला जगह वर्किंग कर रहे हैं, या मैंने जिन्हें सेशन दिया आज एक अच्छी पोजीशंस पर हैं, या वो जो उनमें स्पार्क था वो स्पार्क सही जगह हिट हुआ। तो मैं टेस्टिमोनियल्स कहते हैं या कोई इस तरह से, तो वीडियोस वगैरह बहुत सारी होंगी वेबसाइट में, सोशल मीडिया में, लेकिन मैं जब भी कम्युनिकेट करूंगा मैं प्राउडली नाम लेके कहूंगा। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं आपके, वो कौन सी आपकी क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी आपकी टेक्निक्स और टिप्स होती हैं कि यू रिकॉग्नाइज के इस बंदे को ये नहीं ये होना चाहिए? एग्जैक्टली, लेकिन ये आपने बहुत सीक्रेट पूछ लिया। सबसे पहले हम IQ फाइंड करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली व्हाट्स माय IQ इज, ठीक है। IQ के बाद हम करते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि मैं कितना इमोशनल, फॉर एग्जांपल मैं खुद के ही सेशन कर रहा हूँ, राइट। तो अच्छा, लेकिन एक बात ये भी मैं ऐड करूं वैल्यू, कि हर एक मेंटोर, हर एक कोच का भी अपना कोच होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक बेस्ट लीडर की बात करूं जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूं, कैसर अब्बास, उनके भी अपने मेंटोर हैं, राइट। तो मेरे भी अपने मेंटोर हैं, मैं उनसे भी अपनी चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो मैं भी किसी का मेंटोर हूं, इस तरह से हम प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया IQ, देन हमने किया EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, देन हमने किया सोशल इंटेलिजेंस, कि वो सोशली कितना इंटरेक्टिव है। लाइक द सेम, अभी एक कैंडिडेट ने कहा कि सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, आगे क्या करना है, इंजीनियर बनने का इरादा था, ये सेंटेंस यूज किया, बिल्कुल। लेकिन आपने क्या पूछा कि क्या बनना है, इरादा था, लेकिन अब क्या है, मींस दैट अब कुछ नहीं, अब ये ब्लैंक है। हाँ, चले एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है, और आप लोगों की लाइफ बनाते हैं, कैरियर बनाते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उनको राइट वे बताते हैं, रॉन्ग वे से बचाते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा सर, कहा जाता है कि हमारे यहाँ मतलब बच्चों में हुनर बहुत है, लेकिन इनको तराशेगा कौन? बहुत ज़्यादा हुनरमंद है, और फिर हमने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक फियर होता है, वो आगे नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप बताएं। फिर सबसे पहले मैं कहूंगा कि वो घर से आते हैं। हाँ, हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये नहीं करो ये हो जाएगा, ये नहीं करो ये हो जाएगा, तो ये नहीं करो जो है ना, आप ये मत कहो, आप उसको डायरेक्शन चेंज कर दो, आप डायरेक्शन दो। मैं बोलूं बेटे डोंट टच माय सेल फोन, डोंट टच, तो वो बच्चा और टच करेगा। अगर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, रिफ्यूज कर रहा हूँ, तो बच्चे में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वहां पर। वही रेजिस्टेंस जब आप बड़े होते हैं, जब आप जाते हैं, तो वो फेयर बनती है, वही आपके डिफरेंट क्वेश्चंस रेज कर रही होती है। आज अगर मैं किसी काम से रुक रहा हूँ, किसी काम का फेयर है, तो मुझे किस बात का फेयर है? अगर मैं खुद से पूछूं कि यार तू इतना डर क्यों रहा है, तो फिर कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। और कहा जाता है ना कि आपको जिस काम का डर है आप वही करें। हाँ, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, आप वही करें, लेकिन पहले आप सोच समझ के करें। हाँ। जो स्टेप आपने ले लिया, तो अब आपने उसे द नंबर 1 करना है, ठीक है। देखिए यूनिकस नहीं होता, यूनिक एक ही होता है, ठीक है। तो आपने जिस फील्ड में भी जाए, उस फील्ड में आप यूनिक हो जाए, नंबर 1 हो जाए। हमने जैसे अभी सर ने कहा कि हम करियर्स पे काम करते हैं, करियर को ही लेकर हमने
क्योंकि तमाम के वर्ड्स में क्या था, यार करियर बहुत मुश्किल है, नहीं पता क्या होगा आगे, नहीं पता क्या करना है, एग्जैक्टली मुझे खुद नहीं पता था क्या करना है, हमें गाइडेंस इस तरह नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो लेटर ऑन फिर मैंने इस तरह से खुद मैंने इंस्टीट्यूट सर्च किए, कुछ मुझे अच्छे टीचर्स मिले, आज मैं चाहूंगा कि उनका नाम मैं यहाँ पर मीडिया में लूं। तो जब फर्स्ट जो मुझे टीचर मिले, क्योंकि टीचर या फ्रेंड्स या आपको इन्वायरमेंट, ये 3 चीजों में से कोई एक चीज में मिल जाए तो यू आर मच ब्लेस्ड। और आज इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, आप कनेक्ट तो हो, आप मेंटोर्स तो ढूंढो अपने, लेकिन जो मेंटोर हो तो आप देखो कि वो वाकई आपको गाइड लीड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप जिसे अपना लीडर मान रहे हो वो वाकई लीडर है, तो फिर आप उसको अटेंड करो। लाइक अभी सर ने क्वेश्चन किया कितने कैंडिडेट्स मुझसे पास आउट हो चुके हैं, मेरे तमाम कैंडिडेट्स मुझसे बड़े होते हैं, एज में सबसे छोटा मैं होता हूं। अब बड़ा एक आपसे ऐसा सवाल करने जा रहा हूं, पता नहीं आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, शायद हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप ये कहें कि उनके पास कोई जादू है या वो कोई ऐसा मंत्र वंतर नहीं पढ़ते, लेकिन उनके अल्फाजों में इतनी अट्रैक्शन है, उनके अल्फाज इतना माइंड में बैठ जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को मानता हूं। मुझे ऐसा लोग, मतलब इफ ही इज अ गुड ट्रेनर, तो फिर सामने 60-70 या 250 या 1000 बंदा बैठा हुआ है, वो चाहे स्टीयरिंग को जहां मोड़े वो वही मुड़ जाए, वो उनको कहे रो तो वो रो जाए, वो उनको हंसाए तो वो हंस जाए। एग्जैक्टली। क्या ये आप में है? बिल्कुल है, बिल्कुल इस बात को मैं एडमिट करूंगा। और एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ ट्रेनर हम ये सिखाते भी हैं कि आप जब, क्योंकि आपके ऑडियंस में आपके साथ बॉम्ब भी होता है, हम एक बॉम्ब का नाम देते हैं जिसे आपने डिफ्यूज भी करना होता है, क्योंकि जब हम एक क्राउड में होते हैं तो पॉसिबल है कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर बैठा हो वही पास लेकर, और उसने ये मुझे चैलेंज करना होता है कि मैं पब्लिकली इसकी फेम खराब करूं, पब्लिकली इसको चैलेंज करूं, तो वो मेरे लिए और वो 2-3 बॉम्ब भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मल्टीपल वो ग्रुपिंग होती है, इन लोगों की ग्रुपिंग होती है कि भाई ये इदारा अगर मेरे अगेंस्ट था तो वो अपने इदारे की टीम भेजते हैं प्रॉपर वे में, कि अगर एक लूज करे तो आपने करना है। तो हम ये तमाम चीजें सिखाते हैं कि आपने किस तरह उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है बहुत पोलाइट वे में। तो ये जिस तरह हमारे सारे कोर्सेज होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, ट्रेन द ट्रेनर है, लाइफ कोचिंग है, करियर काउंसलिंग है, हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्राउड है, उस क्राउड को आप चाहें तो हंसा सकते हैं, बिल्कुल, आप चाहें तो रुला सकते हैं, बिल्कुल, उनके सबके माइंड लाइक आपके हाथ में होते हैं। एग्जैक्टली। जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो डिफरेंट वहां पे 100 ऑफ माइंड्स होंगे, लेकिन आपका जो एक माइंड है वो आपका मास्टर माइंड है। आप एनर्जाइज हो, आपको पता है किस तरह से सब पे छा जाना है, क्योंकि हम ये सिखाते हैं जब आप आओ तो सबको पहले इन्फ्लुएंस करो। स्टार्ट के जो 30 सेकंड्स होते हैं, इस 30 सेकंड का गेम होता है कि आप इस 30 सेकंड में सबको आप इन्फ्लुएंस कर लो। अगर तो आपने कर लिया तो आपका गेम बन गया, अच्छा, अदरवाइज आप गेम ओवर। फिर आप फिर बोलते हो कि मेरा कोई को फैसिलिटेटर आ जाए या कोई मुझे असिस्ट करे या कोई ट्रेनर। जी, जैसे बच्चे होते हैं तो पहले आपको माइंड पर जाना पड़ता है। बिल्कुल आसान कर देते हो। बिल्कुल। फिर अगर आप वो सक्सेस, वो 30 सेकंड आपने खो दिए तो फिर आपके मन में ये होता है कि यार मुझे कोई बचा ले यहाँ से, ये जो मेरे सामने आवाम बैठी है मुझे नोच खाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब भी हमारे जितने पास आउट कैंडिडेट्स हैं, सर चले आप तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, नहीं, आप बिल्कुल रिसेंट कोई फ्रेश कैंडिडेट लेकर आ जाए और वो बंदा भी इस करने के काबिल है, वो बंदा भी वही तमाम चीजें जानता है जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी स्ट्रगल की है इस फील्ड को लेकर। अच्छा, जब आप आते हैं क्राउड के सामने तो वो जो बॉम्बर्स हैं वो अटैक भी तो करते हैं ना? बिल्कुल। और डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक होता है उनका, तो शरारती भी होते हैं, बिल्कुल, है ना? कुछ ऐसे टॉपिक से हट के भी बिल्कुल आपको करते हैं ना, डाइवर्ट कर देंगे। अच्छा, आंख मचोली भी होती है। ये तो हर फील्ड में है ना? ये तो हर फील्ड में है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं तो उसमें आपको अटैक करने वाले लोग मौजूद हैं। अब आप बताएं कि हर फील्ड में इन लोगों से कैसे बचा जाए। अच्छा, एक तो सबसे पहले कि आप अगर हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं या चैनल पे हैं, आप भी अटैकर हो सकते हैं, बॉम्बर हो सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट थिंग बॉम्बर बनने में कि आप या तो वो बात आपके इंटरेस्ट की नहीं है, या तो आप खुद नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या करना है, तो आप ब्लेम गेम करने चले गए, जो हमारी सोसाइटी कर रही है। सोसाइटी को ये नहीं पता उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है, उनकी पावर क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। अगर मैं किसी कैंडिडेट को 100 के क्राउड में भी पूछूं कि कोई 5 बंदा बता दे कि लाइफ में क्या करना है, और आपके सामने एक फरिश्ता मौजूद हो जो कह दे एक विश बताओ, वो विश मैं पूरी कर दूं, तो कैंडिडेट नहीं बताते। आप अगर तो नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम। कभी ट्रेनर नहीं होता तो क्या होता? एक अच्छा लीडर होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अच्छा लीडर एंड ट्रेनर, इनमें डिफरेंस कितना है? एक अच्छे ट्रेनर कोई डिफरेंस नहीं है,
कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, और घर में लीडर इज अ ट्रेनर, ट्रेनर इज अ लीडर। अच्छा, घर में लीडर है, घर में ट्रेनर है, बिल्कुल, या घर में आप बिल्कुल मुख्तलिफ है? नहीं, घर में भी ये अब तमाम एक लास्ट में बहुत या। इंपॉर्टेंट, कभी हमें अक्सर ऐसा ना खुश फहमी पाल लेते हैं हम लोग हाँ, कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा पहनता हूँ, मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं अच्छा क्रिकेटर हूँ, लेकिन आप होते नहीं है सर। हम बना देंगे, आप हमारे पास, इसका मतलब ये जब आप खुद को मान रहे हो ना, आप एक दिन बनोगे लाजमी, क्योंकि वो स्पार्क है, आप में क्यूरियोसिटी है, आप में एनर्जी है, आप बनना चाहते हो, तो आप हमारे फील्ड में आओ। हम ये कहते हैं आपके पास नहीं है फी पे करने के लिए, ना करो, आप कंसेशन में आ सकते हो। हमने अपने डिपार्टमेंट में कंसेशन सेल बना रखा है कि आपको कंसेशन अवेल करना है, कंसेशन अवेल करो, लेकिन हम कहते हैं आप फिर एज अ वॉलंटियर 6 मंथ हमारे साथ रहोगे। अच्छा सर, ऐसा आप होता ट्रेनर है बनने के बाद कि- हमारे फील्ड से एज अ ट्रेनर कहीं जाओगे, हम आपको रेफर करते हैं, आप फला इंस्टीट्यूट जाओ, फला ऑर्गेनाइजेशन जाओ, या हमारे प्लेटफॉर्म से आप ये सब्जेक्ट्स ट्रेन करो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो वाकई इस चीज के काबिल हैं। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, और इस बात मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप वॉलंटरली आप आए, आप अपना लोहा मनवाएं, यस, आप अपना टैलेंट हमें बताएं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई फीस नहीं है, और मजे की बात ये कि फिर हम आपको अपने पास नहीं रखेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम फौरन से आपको बोलेंगे जाएं, आपको हम इकरा यूनिवर्सिटी भेजते हैं, वहाँ जाके लेक्चर दें, और वहां पे जब आप एक बार आएंगे वापसी पे, तो शायद आप ऐसे कॉलर ऐसे करेंगे कि दादा मैं ही हूं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। तो स्टूडेंट्स कम अप विद द स्वीट्स और विद फ्लावर्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वहां पर जो मुझे खुशी होती है कि यार मेरा जो कैंडिडेट था वो सक्सेसफुल हो गया, मींस दैट मैं सक्सेसफुल। चले, बहुत दूसरी बात, सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, सियासत में कुछ लोग कहते हैं मैं हादसाती तौर पर आ गया, कुछ कहते हैं यार मुझे शौक था और आज वो शौक पूरा हो गया, कुछ कहते हैं मैं आया ही खिदमत करने हूं। आप किस लिए आए? सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना लाजमी है, ठीक है, सबसे पहले। हाँ ये तो है। वो घर से तरबियत मिलती है भाई की बात जो है। आप अच्छे इंसान हैं और तो आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप बुरे इंसान हैं तो बुरा इंसान आप काम करेंगे, सारे बुरे काम बहुत सारे हैं, फिर बुरे का आखिर में अंजाम जो होता है वो बुराई है, बहुत ही बुराई है। खिदमत करते हैं आवाम की, बिल्कुल। देखें, अगर हमारी पार्टी की आदत में नहीं है ना, टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने इलाकों में आवाज़ उठाते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं फाइल भी लाया हूँ, किसी कब्जे के हैं, किसी के केलेक्टिक के मैटर हैं, उनको रास्ते बताता हूँ, भाई आप केलेक्टिक के मैटर। अच्छा, अच्छे बुरे लोग तो हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो आपकी पार्टी में भी बुरे लोग होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कन्वीनियर का जो हमारे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका विजन ये है कि पढ़े लिखे लोग हों, साफ शफाफ हों, और कोशिश हमारी ये है कि हम उन लोगों को लाएं जो मेरिट पे, यानी जो पढ़े लिखे काबिल हैं, जिनको सियासत के बारे में तो पता हो, लेकिन उससे बेहतर वो अपने इलाकों के मसाइल हल करना जानते हो। सही। और वुमेन ज्वाइन कर सकती हैं आपकी पार्टी? कौन? खवातीन। बिल्कुल, खवातीन है, क्यों नहीं है। सही। लेकिन एक फोबिया है सर, फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छा काम भी करना चाहता हूँ, इस तरह से कुछ मैं फ्रंट में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ यार सियासत में नहीं जाओ, सियासत में नहीं जाना, क्योंकि सियासत में आप इधर जाते हो फिर आपको एक बस देखिए, खत्म। एक ही चीज बुरी नहीं है पाकिस्तान में, ये हमने बनाया, फिर वही बात, शहर हमने गंदा करा है, हम साफ करेंगे। वजह ये है कि आप तो सिर्फ सियासत देख रहे हैं, हाँ। ऐसे तो मैं अगर फोर्सों पे जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे इदारों पे जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, हाँ। सही है। किसी को आप बोले, एक मिसाल मैं आपको सपोज दे रहा हूँ, किसी को बोले रेलवे की नौकरी करो, वो बोलेगा मैं नहीं करता। किसी को बोलो आप यार एजुकेशन की पट्टियाली नौकरी करो, वो बोलेगा मैं नहीं करता, और जिसको शौक होगा उसको मिलता नहीं है। सर एक हम मुहावरा कहते थे, बिल्कुल, एक हम सेंटेंस कहते थे स्कूल के जमाने में, शेर व शायरी तफरिया करते थे, कहते थे जो कुछ नहीं होता वो शायर होता है। आजकल ये चेंज हो गया है, जो कुछ नहीं होता वो टीचर होता है। टीचर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये लम्हा फिक्रिया है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं एग्री करता हूँ आपके इस सेंटेंस से। और वो फेक टीचर होता है, जो ये अच्छे टीचर्स हैं वो नहीं है। ये वो तमाम टीचर्स ने इस इन्वायरमेंट को खराब किया है जिन्हें नौकरी या जॉब नहीं मिल रही, वो कहते हैं मैं मीनवाइल जब तक मैं कहीं सेटल नहीं हो जाऊं मैं इधर टीचिंग स्टार्ट करूं। ऐसे ही है। उन लोगों ने आकर टीचर्स के जो एक मकाम था, टीचर का एक रुतबा है, उस रुतबे को अफेक्ट किया है। तो मैं ये कहूंगा कि आपने मीनवाइल कोई काम करना है ना, तो आप अपने टैलेंट को जानो यार, आप बने किस लिए हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप किस काम के लिए बने हो, हम सबके थम्स आपने आगे लेकर आए, चलें थम्स आगे लेकर आए, क्या हमारा थम्स मैच करता है आपस में? नहीं नहीं करता। सिग्नेचर है, तो हम खुद भी एक सिग्नेचर है।
ہم کیوں نہیں برانڈ بن جاتے؟ ہمیں اپنے ٹیلنٹ کا تو پتا ہو نا. اب مجھے پتا ہے کہ میرے کیا کیا پوائنٹس پازیٹیو ہیں, کیا کیا میرے ٹو ڈو لسٹ ہے, کیا نیگیٹو ہے, کن فیکٹرز کو مجھے نہیں رکھنا, کن فیکٹرز کو اپنے ساتھ رکھنا, مجھے پتا ہے. تو آج جب بھی میں کہیں پوزیشن پہ لیڈ کر رہا ہوں. میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو جاتے جاتے, میسج کیا دیں گے؟ یہ ایس ایم قدیر کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آپ خود کو جانو, خود سے بات کرو, پاؤز, تمام چیزیں فریز کر دو. ابھی جس کنڈیشن میں, جس پوزیشن میں, فریز, ٹیک اے مومنٹ وتھ یور سیلف, ٹیک اے پیپر اینڈ پین, اور آپ لکھو کہ آپ جس سے برین اسٹارمنگ ہے, آپ سرکل بناؤ, بیچ میں لکھو ایس ایم قدیر, میرے پاس یہ سکلز ہیں, یہ سکلز ہیں, یہ سکلز ہیں, جتنے سکلز ہیں, جتنے ٹیلنٹ ہے, سب لکھ دو. اس کے بعد وہ تمام چیزیں لکھو جن سے آپ کو فوبیا ہے, آپ ڈر رہے ہو. پھر آپ وہ لکھو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو, کیا کیا آپ کے مائنڈ میں انڈکشنز ایڈ کی گئی ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ بننا ہے, آپ نے یہ بننا ہے, آپ نے. پھر دیکھو جو اسکلز ہیں وہ اس کے ریلیٹڈ میں کیا بن سکتا ہوں, کس اسکلز کو پالش کروں گا. میں ایک جو ٹرینر ہے ان سے انسپائر ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہی ارننگ کرتے ہو جتنی آپ کیپیبلٹی ہوتی ہے آپ کی, جتنے آپ کی ورتھ ہوتی ہے, جتنی آپ کی ویلیو ہے, آپ اتنے ہی ارن کرو گے. تو ویلیو اپنے بڑھاؤ. ویلیو کیسے بڑھاؤ گے؟ آپ اسکلز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لے کر آؤ, آپ اسکلز سیکھو, اور یہ بھی کہا پرسنالٹی پہ جاتا کام ہے کرو. کہ صرف 2% لوگ ہیں جو لکھتے ہیں اور باقی جو 98% ہے وہ پھر ان کو فالو کرتے ہیں جو لکھتے نہیں ہیں. ایسا ہے بالکل. میں یہ کہوں گا آپ لکھو. ہم لکھنے کا یوں کہتے ہیں جو چیزیں ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ دیتے ہیں نا, وہ ہمیں اچیو کرنا ہے. ورنہ آفٹر 7 days اگر ہم دیکھیں گے اور وہ چیزیں اچیو نہیں ہو تو ہمیں تھوڑا سا ایک گلٹی یا شیم فیل ہوتا ہے, یار میں نے نہیں یہ خود سے کمٹمنٹ کی تھی, میں نے خود سے کمٹمنٹ. جب آپ میں یہ چیز آ جاتی ہے, ویل پاور. دیکھیں ایک بہت ابھی شبنم اوس کا موسم ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اوس یا شبنم چاٹنے سے پیاس نہیں بجھ جاتی, آپ کو پانی پینا پڑتا ہے پیاس بجھانے کے لیے. کیا بات ہے. تو اپنے پیاس کو تو لے کر آؤ یار. آپ کچھ کرنا تو چاہو, آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے, آپ آرڈنری پیپل بن جاتے ہو, پھر آپ بلیم کرتے ہو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. آپ بنو, آپ سگنیچر بنو, برانڈ بنو. ٹھیک ہے, آپ کو ہمارا پلیٹ فارم چاہیے, آپ آؤ. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت بات کی قدیر صاحب نے کہ نا شکایت کو چھوڑے, کرنے والے بنے. جب آپ کرنے والے بنیں گے نا تو منزل دور نہیں ہے, منزل آپ کو مل ہی جائے گی. سلمان کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ نوجوان سیاست سے تو بڑے مایوس ہیں. سیاست سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھا سوچیں, کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کریں کہ کسی کو اپنے پاس سے ذات سے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, کسی کا کام آپ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ ریفر کر دیں. بھلے آپ کچھ نہ بنے ایک اچھے انسان بن. بالکل, سب سے اچھا انسان لازمی ہے اس ملک میں. یہاں ہے نہیں لیکن بننا چاہیے. ہے نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ. چلے کہ نا ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. آٹے میں نمک کے برابر اچھے لوگ ہیں اور کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. آپ میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے تو کسی کا برا, کسی کا. آپ چلیں اور میں آسان کر دیتا ہوں, آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھلا کریں, تو پھر کسی کا برا بھی نہ کریں, کسی کو نقصان بھی نہ دیں, کسی کے مسئلوں میں انٹرفیئر بھی نہ کریں, کسی کی نوکری کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں, کسی کی مال کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کی فیملی میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ ریلیشن شپ میں بھی آتا ہے کسی کے ساتھ, تو کسی کے بندے کے پتر بن کے پھر رہے تو یہ بہتر ہے. اور اوور آل آج کا جو مجھے مطلب کنکلوژن جو نکلا ہے ہمارے شو کا, وہ یہ ہے کہ نوجوان خود مایوس ہے. البتہ ہم سے جو پہلے گزرے ہیں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے دادا پردادا, شاید ان کے پاس اس سے بھی کم مواقع تھے, اس سے کم سہولیات تھی, لیکن انہوں نے شاید ہم سے زیادہ مقام حاصل کیا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, رائٹ وے پہ اسٹرگل کرتے رہے اور منزل ان کو ملی. تو آپ کو بھی منزل جب ملے گی جب آپ اچھے راستے کا چناؤ کریں گے. ہر رات کے بعد اجالا بھی ضرور آتا ہے, اور سورج بھی ہمیشہ اکیلا نکلتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں بھی چمک رہا ہوں. تو آپ کو اکیلا ہی چمکنا ہے. لیکن وہ سورج برن آؤٹ ہوتا ہے. آپ بھی خود کو اتنا ریزسٹ تو کرو, اتنا برن تو کرو کہ آپ روشنی پرووائڈ کر سکو, پھر آپ سورج کی طرح چمکو گے نا یار. تو آپ خود کو جانو, پہچانو, خود کو پہچانو. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ.